Welcome everyone to our Thinking Thursday. As you know, the Thinking Thursday group is like a Zoom platform which meets every Thursday, and the community is growing steadily, which is really wonderful. And every Thursday we invite a guest speaker. Today we have Dr. Jeevan Shinde. He's based out of Pune. He is a general surgeon practicing as a laparoscopic surgeon in Pune since 2009. He's also a professor at the medical college out there. He's an owner of a 50-bed hospital along with his wife, Dr. Archana. He helps community through holistic health solutions for diabetes, Excuse me, for ma'am. thyroid, for PCOD, for obesity since the last 10 years. I met Dr. Shinde and his wife Archana when they attended my past life workshop in Pune, and they've steadily kept in touch with me. And they're doing some amazing work. And when I heard about it, I think it was last year when we met in Pune, I said I must invite Dr. Shinde to speak about this amazing holistic medical work that he's doing. I think we need more and more holistic doctors because slowly and steadily, as you know, we need to have that kind of approach so that the mind, body, and the soul can be involved in healing. So, Dr. Shinde, over to you. Thank you, ma'am, for the warm welcome, and thank you from my entire family and me and Archana, because entry of your aura in our life was phenomenal. Our transformation after that, holistically in 360 degree in every aspect, like in our practice, in our day-to-day life, in our husband and wife relationship, and everything changed after, I say, 2020, March 2020, when we attended your PLR workshop. That was really right transforming, and because of that, maybe we were working as a I was working as a surgeon, helping people to heal through surgical skill, but the small work we were doing regarding the holistic health, that took up after meeting with you. That was I may say, I must say, that was a God's message कि हमने वो सारा चीज आगे लेके जाना है. और आई एम पार्ट ऑफ थिंकिंग थर्सडे, दो आई डोंट अटेंड इट रेगुलरली एज अ लाइव, लेकिन बहुत सारे यूट्यूब के जो अपलोड्स हैं मुझे हेल्प करते हैं. आई रेगुलरली सी बहुत सारे पूर्णमदा के एपिसोड हमने देखे हैं, और छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो हमें शायद स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में आगे जाने के लिए हेल्प करती है. तो थैंक यू फॉर दिस एंटायर कम्युनिटी एंड एंटायर ग्रुप, राइट, एंड thank you once again giving me an opportunity to present my work. So I'll be just sharing my slides. Okay, yes. I think the slide is visible. Okay. Yes. So again, thank you for helping me to grow in a spiritual quotient. And today will be my small contribution to help you to grow your health and wellness quotient. Okay. So just 1.5 hours before, मैंने आपके ग्रुप में, I think Hindi and English mixture is okay for all. Yes, it's perfect. Right. Perfect. So I just posted a gut health IQ, right? और आप में बहुत सारे लोगों ने शायद वो स्कोर्स निकाले होंगे, तो आप चैट बॉक्स में थोड़ा सा आपका स्कोर्स डाले, तो मुझे समझ में आएगा कि हाउ इज द गट कंडीशन ऑफ दिस ग्रुप. तो आपके स्कोर जस्ट डालिए, इट मे बी आउट ऑफ यस 21. वाओ सर, इसमें 18 क्वेश्चन समझ में नहीं आया, क्या आप बता सकते हैं क्या है? Just let me just I'm not remember exact sequence. I just have to copy. You can just read. May I read it? Yeah. It's I don't have a bowel movement every day. Maybe every other day, or even just once, twice, or thrice times a week. Okay, it is just how frequently you're passing the motion. Daily, दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार, right? Thank you. दिन में नहीं, वीक में, right? तो जो ऑप्शंस दिए हैं ना, नेवर, रेयरली, समटाइम्स, तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स आपको करना है, राइट? तो और एक क्वेश्चन समझो, आई एम कॉन्स्टिपेटेड,
always or sometimes often or there is a score below, right? अभी आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो बाद में भी अटेम्प्ट कर सकते हो. दिस इज जस्ट अ सेंसिटाइजेशन की जो हम बहुत बार ना हम छोटी छोटी चीजें जो हमारे गट के साथ होती है, सिंपल एसिडिटी या सिंपल कॉन्स्टिपेशन या सिंपल वेरिएशन, आपको लगता है कि हाँ दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ, ये होते ही रहता है, होने ही वाला है. तो हम बहुत बार निग्लेक्ट करते हैं और वो सारी चीजें आगे अकुमुलेट करके हमारे हेल्थ में अफेक्ट करती है, राइट? तो चलो आगे जाते हैं. जस्ट कीप ऑन एडिंग योर स्कोर. तो ये थोड़ा सा फिल्मी डायलॉग है ना, आपने सुरिलेटिव के वर्ड में भी आपने देखा होगा कि व्हाट वी आर नॉट हु और व्हाट वी थिंक वी आर. ओके, हम वो नहीं है जो हम सोचते हैं कि हम है, राइट? तो शायद स्पिरिचुअलिटी में आपने वो एक्सपीरियंस किया भी होगा. आज अब हम थोड़े से मेडिकल टर्मिनोलॉजी में या गट हेल्थ के एंगल से हम देखते हैं कि हम जो है एक्चुअली फिजिकल जो दिखते हैं या हम जो एक्सपीरियंस करते हैं कि मैं हूँ, शायद मैं ये स्किन से या बोन से या ये सारी चीजों से हम हमें हमारे फिजिकल बॉडी को रेफर करते हैं, लेकिन एक्चुअली अंदर क्या चल रहा है और अंदर जो हम समझते हैं वो नहीं है चल रहा है. तो आज आप वो सारा चीजें समझोगे. थोड़ा सा मैडम ने मेरा ऑलरेडी इंट्रोडक्शन किया है, तो ये हमेशा मैं स्लाइड दिखाता हूँ. जब मैं कोई भी होलिस्टिक वे से बात करता हूँ ना, लोग मुझे जानते हैं शायद मेरे डिग्री से क्या है, मैं इलनेस इंडस्ट्री डॉक्टर. इलनेस समझते हो कि हम रुकते हैं आपको बीमार पड़ने तक और बाद में शायद ट्रीटमेंट गोली दवाई या सर्जरी से करते. तो वो सेक्टर में बहुत सारे 15 साल से मैं काम करता हूँ. आई पास आउट फ्रॉम बीजे मेडिकल कॉलेज पुणे, एमबीबीएस पास आउट किया और बाद में गवर्नमेंट इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज जो नागपुर का, वहाँ से मैंने एमएस सर्जरी किया है. तो जनरल सर्जन और लैप्रोस्कोपिक सर्जन होने के नाते बहुत सारा चीज, और मेरा मेजोरिटी वर्क गट और स्टमक और इंटेस्टाइन के अराउंड होते रहता है. तो पहले जब मैं इलनेस इंडस्ट्री में काम करता था तो वो अलग चीज था, और आज जब वेलनेस इंडस्ट्री में काम करता हूँ, प्रिवेंटिव हेल्थ में काम करता हूँ या रूट कॉज के तक जाना के काम करता हूँ, जब उसके बारे में लोगों के साथ बात करता हूँ तो दे डोंट बिलीव इट कि इलनेस इंडस्ट्री वाला बात ऐसे कर सकता है. दूसरी चीज है, बहुत सारे लोग तो मुझे आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर ही मानते हैं क्योंकि बहुत सारे आयुर्वेदा प्रिंसिपल के बारे में बात करता हूँ. तो हाउ वाज मी, और ये इस सेक्टर में इस पार्ट में मुझे एंट्री करने की मैंने क्यों सोची, क्या उसमें मैंने डेवलपमेंट क्यों किया है, उसमें उसकी एक एक्स्ट्रा मेरे जो एडिशनल नॉलेज से जिससे मैंने सीखा है, मेरा एजुकेशन किया, उसके बियॉन्ड मुझे जाने की जरूरत क्यों पड़ी. ओके, तो हमें हिप्पोक्रेट्स जो उनको आद्य फिजिशियन बोला जाता है, जिसमें वो बोलते हैं कि ऑल डिसीजेस बिगिंस इन द गट. ये कोट आपने बहुत बार सुना भी होगा कि इन्होंने बोला है 5000 ईयर बैक. आयुर्वेदा भी बोल रहा है कि एवरीथिंग बॉइल्स डाउन, और यहाँ पे हर जगह पे फोकस आ जाता है कि हमारे गट हेल्थ के बारे में. ओके, तो ये दिस वाज माय स्टोरी, ये मैं था. ओके, इमीडिएटली आफ्टर पासिंग माय एमएस नागपुर से मैं पुणे में शिफ्ट हुआ था मेरा प्रैक्टिस डेवलप करने के लिए. आई वाज 28 ईयर ओल्ड, एग्जॉस्टेड, ब्लोटेड, फेस वॉज फुल विथ एक्नी, ऑयल था उसमें, इनसिक्योरिटी का फीलिंग था, लो एनर्जी थी, कॉन्स्टिपेशन गैसेस के इश्यूज थे, छोटी मोटी एसिडिटी आ गई थी. ऑलरेडी फैमिली में डायबिटिक की हिस्ट्री थी. मेरे ग्रैंडफादर से, ग्रैंड मदर से मेरे फादर डायबिटिक थे. ही वाज ऑन इंसुलिन. मुझे कोलेस्ट्रॉल डिटेक्ट हुआ था सो अर्ली एज. तो नॉलेज हेल्थ में आई वाज स्टडिंग सिंस 15 ईयर्स. वो हेल्थ का जो स्टडी करते करते शायद मेरा खुद का हेल्थ डिस्टर्ब हो रहा था. ओके, और मैं ऐसा नहीं था. 28 ईयर्स में जो मेरा बॉडी था वाज नॉट लाइक दैट. I belong to a very remote village in अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट. वहाँ पे शायद 50 years बैक इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, पूरे ऑर्गेनिक तरीके से खेती की जाती थी. हम बहुत बचपन से हेल्दी खा रहे थे, बहुत अच्छे से फिजिकल एक्टिविटी थी, और आई वाज जस्ट से लीन थीन कीट, बहुत शार्प एनर्जेटिक था. ओके, और 11-12 में आई जस्ट शिफ्टेड टू द पुणे फॉर माय हायर एजुकेशन. 11-12 में आई, दिस इज अ फर्ग्यूसन का फोटो है, फर्ग्यूसन कॉलेज में 11-12 स्टडी कर रहा था. दिस इज मी. ओके, तो पूरा क्लीन फेस है, चार्मिंग है, कुछ भी फैट नहीं है, एनर्जेटिक है. तो उस टाइम विलेज लाइफस्टाइल से शायद सिटी लाइफस्टाइल में शिफ्ट हो रहे थे. फास्ट फूड का इंट्रोडक्शन हो रहा था, पढ़ाई के कारण बहुत सारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो रही थी, और कुछ शरीर में चेंजेस दिख रहे थे, लेकिन इतना सटल चेंजेस थे कि नहीं रिकॉग्नाइज हो रहा था. उतना शायद फोकस भी नहीं था हेल्थ में एजुकेशन के दरमियान. दिस इज माय फोटो इन ड्यूरिंग सेकेंड ईयर एमबीबीएस से. मेरा फ्रेंड जो नासिक में प्लास्टिक सर्जन है, थोड़ा सा फैट ग्रो हो रहा है, पिंपल्स आना चालू हुए. मुझे लग रहा था कि शायद ये दिस इज अ ग्रोथ के जो साइंस लगते हो. हेयर फॉल होना चालू हुआ था,
एनर्जी थोड़ी सी लो हो रही थी। बाद में टोल हुआ, हमारा जो रेसिडेंसी होता है ना बहुत हेवी रहता है, हमें खाने पीने का टाइम नहीं रहता है, खाने के लिए सोने के लिए कुछ घंटे मिले और खाने के लिए कुछ मिला तो वही रहता है। कभी कभी हमारे 36 आवर्स की ड्यूटी रहती है, तो सब एवरीथिंग बीइंग डिस्टर्ब, सोने का टाइम डिस्टर्ब, खाने के स्टाइल डिस्टर्ब, नो 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 एक्सरसाइज नथिंग, पूरा प्रोसेस फूड खाने का। तो आफ्टर माय कंप्लीटिंग ऑफ माय एमएस जस्ट आई शिफ्टेड टू द पुणे, तो ये मेरा कंडीशन था, ये मुझे वाज सीइंग। तो धीरे धीरे ये सारा बढ़ता गया। नाउ जस्ट लुक एट मी, पूरा ब्लोटेड, हेल्थ के लिए सिर्फ चलना या कुछ घूमना मॉर्निंग में, दिस इज फोटो आफ्टर माय मॉर्निंग वॉक, ये सारी जो चीजें थी। तो मुझे लगा कि यहाँ तक जाने के बाद लगा कि कुछ हेल्थ के लिए करना चाहिए, हमारे हेल्थ के लिए। तो आई जस्ट ज्वाइन द जिम ज्वाइन करने के बाद आई जस्ट लॉस फ्यू केजी ऑफ वेट। ये मेरे ट्रेनर के साथ का फोटो, कोई हॉलोवीन के दिन का रहेगा शायद, राइट। लॉस किया, लेकिन वो वैसे ही कुछ महीनों में यो यो करके अगेन रीगो हो गया। ओके, तो शायद आई वाज जस्ट फोकसिंग, इसमें कुछ मेरे पैरामीटर्स नहीं बदले। और इस समय मेरे पिताजी का इट मस्ट बी अराउंड से 7-8 years बैक, मेरे फादर का, ही जस्ट रिटायर्ड फ्रॉम हिज स्कूल टीचर जॉब, और उनका बहुत सारा डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन, डायबिटीज के पैरामीटर्स बिगड़ गए थे। इंसुलिन वाज जस्ट शिफ्टेड मेरे सामने, एक गोली से उन्होंने स्टार्ट किया था, 2 टैबलेट्स पे, और बाद में इंसुलिन की तरफ वो लेके गए थे। ये स्टोरी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली जो आई एम वर्किंग और मेडिकल का ही नॉलेज होके भी मेरे हेल्थ के साथ इतना खिलवाड़ हो रहा था और ये सारी चीजें हो रही थी, तो जिनको मेडिकल का बैकग्राउंड नहीं है, शायद हेल्थ का बैकग्राउंड ज्यादा नहीं है, तो उनके साथ क्या होता होगा। तो जैसे मेरे पिताजी का डायबिटीज प्रोग्रेस हुआ, इंसुलिन 10 यूनिट्स और ज्यादा लगने लगा, आई विजिटेड अ टॉप नॉच एंडोक्राइनोलॉजिस्ट इन पुणे, उनके साथ मिला। मैंने पूछा कि अब आगे क्या करना है, तो उन्होंने जस्ट एक 15 मिनट 20 मिनट का मीटिंग था, उन्होंने जस्ट रिपोर्ट देके उन्होंने बोला कि आपको ना थोड़ा सा शुगर कम खाना है, एक्सरसाइज करना है, थोड़ा सा वो डाइट चार्ट जरा रेफर करो और उसके हिसाब से आप करो, और ये थोड़ा सा हम गोली और थोड़ा इंसुलिन बढ़ा देंगे। उसके बाद में उस रात में मैंने सोचा कि दिस इज व्हाट, मेरे सामने इतना प्रोग्रेशन हुआ है, और ये जो जो ऑलरेडी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ऐसे बता रहे कि ये करना है, तो दिस इज नॉट सफिशिएंट, हमें कुछ करना चाहिए। तो उनके लिए हमने सारे जो होलिस्टिक हीलिंग के, आई जस्ट स्टार्टेड लर्निंग होलिस्टिक, बहुत सारे बुक्स किताबें पढ़ने चालू की, आयुर्वेदा का अल्टरनेट कोर्स मैंने किया, बहुत सारी चीजें हमने ढूंढना चालू किया, सिर्फ पिताजी की हेल्प अच्छी करनी है। ओके, आई लॉस्ट माय मदर इन एमबीबीएस, तो पिताजी ही थे, तो उनको मुझे अच्छा करना था। तो उनका 1 साल में वी कुड रिवर्स कंप्लीटली डायबिटीज, पूरा इंसुलिन बंद हो गया, एक जस्ट मामूली टैबलेट्स के ऊपर अभी है लास्ट 7-8 years से। तो दिस जो ट्रांसफॉर्मेशन मेरे आगे हो गया, तो उससे मेरी आंखें खुली, और उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन हमने देखा कि गट हेल्थ के बारे में, जो होलिस्टिक हीलिंग के बारे में हमने देखा। तो वो जो होलिस्टिक हीलिंग है एक स्मॉल पार्ट, और लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट आज आपके साथ हम शेयर करेंगे। और उनके साथ साथ में उनकी जो लर्निंग थी उसके साथ में मैंने मेरे ऊपर और मेरे पूरे फैमिली के ऊपर, अर्चना और हमने सबने खुद के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन करना चालू किया। दिस इज मी टॉकिंग विद यू दिस वे, नॉट कंप्लीटली, आई कैन नॉट से कि आई एम 100% हेल्दी एंड ऑल दैट, बट जो सेटिस्फैक्शन मिलता है खुद की हेल्थ के साथ में, जो प्रोग्रेशन और जो एनर्जी और ये सारे जो चीजें महसूस किए, वो लर्निंग और कुछ नगेट्स में आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ, राइट। तो उसमें स्पेशली ये सारे जर्नी में मेरे पिताजी के ट्रांसफॉर्मेशन है और मेरे ट्रांसफॉर्मेशन में व्हाट आई डिस्कवर इज अ स्पेशल कनेक्शन बिटवीन प्लांट्स इन आवर डाइट एंड द माइक्रोब्स इन आवर बॉडी, राइट। और जो ये दिस अकॉर्डिंग टू मी दिस इज अ की फॉर ह्यूमन हेल्थ, और उसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। ओके, आई विल बी शेयरिंग यू विथ यू ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ अ गट माइक्रोब। ओके, ये कुछ फैट डाइट नहीं है या फैट कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, दिस इज प्योर साइंटिफिक, दिस इज अ काइंड ऑफ लाइफस्टाइल ट्रैजेक्टरी जो हीलिंग देती है। ओके, जो इंटरनली हमें हील करेगी, हीलिंग करने के लिए हेल्प करेगी, और दिस इज वेरी इजी टू डू, इट इज नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, इतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, जैसे अंडरस्टैंडिंग हमने किया और छोटे छोटे स्मॉल चेंजेस करने की हमने कोशिश की डेली। एक दिन का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, 1 महीने का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, इट इज अ कंसिस्टेंसी। कोई भी बड़ी चीज है ना, हेल्थ रिगेन करना, दिस बड़ा बड़ा फेनोमेन है, बड़ा चीज है, उसके लिए छोटी चीजें आप करते जाओगे, और उसके कुछ छोटे टिप्स और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आज के सेशन में मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। ओके, दिस इज अ नंबर, है बिग नंबर, राइट।
शायद ये नंबर काउंट करके प्रोनाउंस करने में डिफिकल्टी आएगी। ये नंबर मैंने क्यों प्रोजेक्ट किया, व्हाट मे बी ये क्या हो सकता है नंबर, कैन यू इमेजिन ये नंबर क्यों लिखा है मैंने? थोड़ा सा इंटरेक्ट करते हैं कि चैट करते हैं कि दिस इज अ बिग नंबर, क्या लगता है आपको ये नंबर क्या है, क्या 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 काउंट हो सकता है इसका? ये हमारी बॉडी में कुछ हो सकता है, या तो कोई नर्व्स हो सकते हैं या बैक्टीरिया। मुझे तो कोई ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट कुछ तो हमारी बॉडी से रिलेटेड होना चाहिए। यस, ओके। तो एक्चुअली ना ये जो नंबर है दिस इज 10 टाइम्स ऑफ जो हमारा मिल्की वे है, गैलेक्सी है, गैलेक्सी के जो हमने स्टार काउंट किए ना, तो उसका जो हम 10 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करेंगे दिस नंबर, एक्चुअली दिस इज जस्ट मैच करता है इस नंबर से। तो ये नंबर क्यों निकला है? क्योंकि इतने माइक्रोब्स हमारे इंटेस्टाइन में, हमारे गट में है। ओके, तो जब मैं माइक्रोब्स रेफर करूंगा या जस्ट सिंपली बातों बातों में मैं जस्ट बोलूंगा कि बैक्टीरिया, तो जस्ट थिंक ऑफ कि दिस इज अ माइक्रोब जिसमें बैक्टीरिया आते हैं, फंगाई आते हैं, अर्का आते हैं, पैरासाइट आते हैं, वायरसेस आते हैं। तो सिंगल सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं तो उनका एक कॉम्बिनेशन है। तो ये नंबर देखा जाए ना, जैसे मैंने पहला सेंटेंस बोला था कि हम जो है वो नहीं है, तो हमारा जो पूरा ह्यूमन सेल का काउंट किया जाए तो उससे 90 टाइम्स, यानी हम 90% माइक्रोब्स की सेल्स का काउंट रहेगा और 10% सिर्फ हमारा ह्यूमन का सेल का काउंट रहेगा। तो हम एक्चुअली जो घूमते हैं ना उसमें से 90% सेल जो काउंट वाइज इज दिस माइक्रोब्स। तो जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में हमने बोला, देखा होगा, तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, उसमें हमारे जीन्स के डिकोडिंग किए गए। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या हुआ कि जो जीनोम की तरफ हम देख रहे थे दैट इज जस्ट 10% 20% ऑफ कंट्रीब्यूशन। 90% तो जीनोम हमारा बैक्टीरिया और ये माइक्रोब के साथ हो जाता है। तो बहुत सारा इन्फ्लुएंस के हमारे हेल्थ में आता है। दिस इज नॉट जस्ट बाय चांस, ऐसे एक्सीडेंटली ये बैक्टीरिया या माइक्रोब्स हमारे शरीर में नहीं आए हैं, इनका कुछ मेजर रोल और इतने काउंट में है तो उसका बहुत ही बड़ा रोल है। 15 years बैक जस्ट 200 स्पेसीज वेर आइडेंटिफाइड और डेली अब वो काउंट बढ़ते जा रहा है। 10,000 से ज्यादा स्पेसीज हमारे बॉडी में माइक्रोब्स की होती है। इंडिविजुअल ऑलमोस्ट 300 to 1000 स्पेसीज कैरी करते हैं। जैसे हमारा एक यूनिक फिंगरप्रिंटिंग रहता है ना, जैसे उस हिसाब से हमारे बॉडी के स्टेटस के, अपने हेल्थ के हिसाब से यूनिक माइक्रोबियल कॉम्बिनेशंस हमारे बॉडी में रहता है और बहुत बड़ा रोल क्रिएट करता है। तो एक्चुअली एक गट माइक्रोबियम क्या है, उसके पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली अ गट। गट यानी जहाँ से हम खाना खाते हैं और जहाँ से हम मोशन पास करते हैं, इसका बीच का पूरा रास्ता इज एंटायर गट। यानी हमारे फूड पाई के जिसको इसोफेगस बोलते हैं, ये स्टमक है, स्टमक का बैग है, स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, लार्ज इंटेस्टाइन। तो उसमें हर जगह पे अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन से बैक्टीरिया रहते हैं। बहुत कम बैक्टीरिया इसोफेगस या बैक्टीरिया माइक्रोब इसोफेगस से स्टमक में रहते हैं, उससे ज्यादा प्रोपोर्शन में स्मॉल इंटेस्टाइन में रहते हैं। और लार्जेस्ट प्रोपोर्शन, लार्जेस्ट कॉम्बिनेशन और लार्जेस्ट डाइवर्सिटी इसमें होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में रहती है, राइट। जितना ज्यादा डाइवर्सिटी उतना ज्यादा हमें माइक्रोब का एडवांटेज है, राइट। तो दिस कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट। अब ये पिक्चर है एक फॉरेस्ट का। अब फॉरेस्ट इज इकोसिस्टम राइटली बैलेंस, वहां पे नेचर के बहुत सारे लॉज फॉलो हो जाते हैं। वहां पे पौधे रहते हैं, प्लांट्स रहते हैं जो फल देते हैं, जो फूल देते हैं, ग्रास रहती है, एक रिवर रहती है, बहुत सारे वैरायटीज के एनिमल्स रहते हैं, हर्बिवरस रहते हैं, कार्निवरस रहते हैं। उसका एक यूनिक बैलेंस रहता है उस फॉरेस्ट में, राइट। तो आप सोचो कि जब ये बैलेंस निकल जाता है किसी भी रीजन से, आज आप देखते हो कि क्यों हम टाइगर कंजर्वेशन की तरफ है, क्योंकि टाइगर्स कम रहेंगे तो हर्बिवरस एनिमल ज्यादा बढ़ेंगे, वो जंगल को खा जाएंगे, सारा बैलेंस बिगड़ जाएगा, शायद वो जंगल के बियॉन्ड हमारे खेती में भी आ जाएंगे। तो ये दिस बैलेंस के लिए हम देखते हैं। तो इस काइंड का जो जो होमियोस्टेसिस होता है, जिस तरीके से ये जो बैलेंस रहता है ना, सेम बैलेंस एक्सपेक्टेड है हमारे गट में, ये अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग स्पेसीज के बैक्टीरिया के लिए। और ये जो बैलेंस निकल जाता है, कभी कभी जो बैलेंस निकलना है ना, सिंपल चीजें, शायद आपकी जो एसिडिटी है या कुछ रिफ्लक्स है या ब्लोटिंग है, गैसेस है, तो छोटी छोटी साइंस हमारे तरफ आती रहती है और हमें लगता है कि दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ हमारा लाइफस्टाइल, हम निग्लेक्ट करते हैं और धीरे 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 छोटी चीज बड़ी होती रहती है। और अल्टीमेटली दिस इज काइंड की जो एक्सट्रीम्स है, सिंपल एसिडिटी की तरफ से एक्सट्रीम्स लाइक कैंसर्स, एक्सट्रीम्स लाइक आपके मेटाबॉलिक सिंड्रोम, लाइक हार्ट की इश्यूज, डायबिटीज के इश्यूज,
या अल्जाइमर्स नाम की एक ड्रेडेड कंडीशंस यहाँ तक जा सकते हैं। ओके, ये पूरा इम्बैलेंस है, बहुत ही गलत तरीके से ये यहाँ पे वो ये हार्मनी डिस्ट्रॉयड है। तो ये एक एक पिक्चर है कि एक्सट्रीम्स में एक अच्छा सा बैलेंस और एक एक्सट्रीम्स वाला चीज हमारे साथ गट में हो सकती है, माइक्रोबिया और इसके बैलेंस की तरफ से। ओके, तो अब थोड़ा सा गट का एनाटोमिया एक क्लोज एक जूम इन कर लेते हैं। ये हमारा जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के अंदर क्या रहता है। ओके, जैसे आपके मुंह के अंदर ना एक लेयर रहता है जो मॉइस्ट रहता है, हमें उसको म्यूकोजा बोला जाता है। तो ये पूरा म्यूकोजा हमारे इंटेस्टाइन में रहता है। तो ये हमारा इंटेस्टाइन में समझो ये म्यूकोजा है, अंदर का लेयर है। तो ये अंदर के लेयर में ये सेल्स रहते हैं, एक सिंगल काइंड लेयर का सेल का एक ये यहाँ पे लेयर रहता है, और अंदर ये ब्लड वेसल रहते हैं। हम जो खाना खाते हैं अल्टीमेटली ये सेल के द्वारा यहाँ पे ब्लड में चला जाता है, और पूरे शरीर में फिर वो डाइजेशन के हिसाब से उसके न्यूट्रिएंट चले जाते हैं। तो दिस इज इन जनरल स्ट्रक्चर, सिंप्लिसिटी वे से, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हुए ये जहाँ पे अंडरस्टैंड करना है। तो आगे क्या है एग्जैक्टली, ये दो पिक्चर्स है, ये हरा भरा जंगल ऑन लेफ्ट साइड एंड थोड़ा सा वो डार्क जंगल जहाँ पे पूरा डिस्ट्रक्शन हुआ है वो राइट साइड पे। ओके, जब हार्मनी रहती है, इकोसिस्टम से तरीके से रहती है, उसमें उसको बोला जाता है होमियोस्टेसिस। हर जगह पे हमारी बॉडी बैलेंस करने का सोचती है, तो होमियोस्टेसिस है। आपका टेम्परेचर बढ़ा तो बैलेंस करने का सोचते हैं, टेम्परेचर नॉर्मल आने का सोचती है। तो कुछ ना कुछ चीजें बैलेंस करने के हमारे बॉडी में चलती है। जब सही तरीके से बैलेंस रहेगा तो गट कैसे दिखते हैं, इंटेस्टाइन कैसे दिखता है। ये इंटेस्टाइन का सेल है, इंटेस्टाइन का वॉल है। ओके, यहाँ पे मसल और बाकी की चीजें रहेगी, और ये अंदर का ल्यूमेन का पार्ट है जहाँ पे हमारा फूड घूमते रहता है। तो ये बैक्टीरिया या माइक्रोबायोटा का ये कॉम्बिनेशन, अलग अलग स्पेसीज के हार्मनी में हेल्दी तरीके से ये बैक्टीरिया यहाँ पे रह रहे हैं, और वो हेल्दी पॉपुलेशन है, इसलिए गट भी हेल्दी है, सब अच्छा सा चंगा चल रहा है। ओके, अब कुछ चीज किया आपने, गलत तरीके से खाना खाया, आपकी लाइफस्टाइल सही नहीं होगी, आप बहुत बार एंटीबायोटिक लेते होगे, बहुत सारे ड्रग डिपेंडेंट हो गए, और बहुत सारी चीजों के कारण शायद ये हार्मनी बिगड़ गई है, और विलन्स यहाँ पे आना चालू किया है। ये रेड ये यहाँ पे दिखे, ये जो बैलेंस चाहिए था सही तरीके से वो बैलेंस निकल गया है। तो अब इसका क्या इफेक्ट हुआ, ये बैलेंस यहाँ पे नहीं है, तो ये बहुत सारे केमिकल सिक्रेट करते हैं, डाइजेशन अल्टर कर सकते हैं। ये बैक्टीरिया खुद नए केमिकल से अलग चीजें जो पैथोलॉजिकल है, वो जो डेंजरस हो, शायद हमारे इंटेस्टाइन को डैमेज कर सकती है। तो यहाँ पे ये जो इंटेस्टाइन वॉल है वहां पे थोड़ा सा डैमेज होना चालू किया। यहाँ पे पिक्चर पे देखते कुछ 100 में से दिखते, लेकिन ये जो अल्टरेशन हो जाता है ना, वो करोड़ों में या बिलियंस में ये बैक्टीरिया का अल्टरेशन हो जाता है। राइट, यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने लास्ट 1 साल में या 6 महीने में इधर एंटीबायोटिक लिया है, या पेन किलर लिया है, या कुछ एसिडिटी की गोली ली है। ओके, मुझे लगता है सवाल ही गलत है। सबने ऑलमोस्ट 90% लोग लेते हैं, और कुछ परसेंट लोग रहते हैं कि उन्होंने नहीं लिया है। ओके, 1 साल, कुछ लोग का मंथली डोज चलता ही रहता है। राइट, तो जैसे मैं बात कर रहा था कि कुछ तो चेंज हो जाता है, कुछ तो होता है, कुछ तो कॉज है, उसका इफेक्ट ये बैक्टीरियल पॉपुलेशन या माइक्रोबिया, जैसे आई एम जस्ट रेफरिंग फॉर सिंप्लिसिटी बैक्टीरिया के साथ बहुत सारी चीजें रहती है, तो जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी बैक्टीरियल पॉपुलेशन बदल जाता है। राइट, तो ये जो पॉपुलेशन बदलता है दैट मे बी वन टाइम, लेकिन ये जब रिपीटेड हो जाता है, एक छोटी सी चीज शायद आपको उस टाइम टेम्पररी बूटिंग दे दी होगी, आपका जो डाइट पैटर्न है बदल गया, आपने ट्रैवल किया, कुछ बदल गया, आपकी लाइफस्टाइल बदल गई, थोड़ा सा चीज होगा, लेकिन वो बार बार लंबे देर तक होता है, तो आपको ये दोनों चीजों में डिफरेंस दिखेगा, हेल्दी वर्सेस अनहेल्दी चीज। तो इन जनरल देखते हैं कि अनहेल्दी इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोगों को फूड सेंसिटिविटी आना चालू हो जाता है, जब वो इंटेस्टाइन का डैमेज होना चालू हो जाता है, केमिकल्स अंदर जाना चालू हो जाते हैं, टॉक्सिन्स अंदर जाना चालू हो जाते हैं, तो सबसे पहले फूड सेंसिटिविटी दिखती है। आफ्टर एवरी मील के बाद ब्लोटिंग दिखना चालू हो जाता है, गैसेस और कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज होना चालू हो जाते हैं, खाने के बाद अच्छा नहीं लगता है, स्किन के चेंजेस, स्किन के इश्यूज दिखना चालू हो जाते हैं, स्लीप का डिस्टर्बेंस आ जाता है, फटीग और लो एनर्जी आना चालू हो जाता है, बहुत सारे मेंटल इश्यूज आना चालू हो जाते हैं, इम्यूनिटीज के इश्यूज आना चालू हो जाते हैं। और हेल्दी गट यानी ये सिम्टम्स के पूरे अपोजिट, या जब आप ट्रांसफॉर्म करते हो खुद को अनहेल्दी से हेल्दी से, तो ये पैरामीटर्स आप चेक कर सकते हो, एम आई इम्प्रूविंग इन माई गट हेल्थ। ओके, जिसमें बहुत सारी चीजें आपके साथ डिस्टर्ब हुई होगी, या कुछ चीजें अभी भी स्टार्ट है। कुछ लोगों का मैंने जहाँ तक जिन लोगों ने
आपका स्कोर दिया है तो बहुत बढ़िया स्कोर है, थोड़ा सा माइल्ड अल्टरेशन है स्कोर में, कुछ थोड़ा सा मॉडरेट जोन में आपका आए हो, दैट इज अ गुड न्यूज, अच्छी बात है। लेकिन आज इसके आगे कुछ सालों में ये और भी डेंजर जोन नहीं जाना चाहिए, तो इसके लिए आज आप यहाँ से इम्प्लीमेंट सीख के इम्प्लीमेंट करना चालू कर सकते हो। ओके, तो जब मैं बचपन में था ना, या जब मेडिकल का नॉलेज नहीं था, या बहुत सारे कॉमन लोगों को जो हमारा धारणा रहता है कि हमारा जो गट है, जो इंटेस्टाइन है, आंतड़ी है, फूड पाइप है, स्टमक है, उसका मेन काम है डाइजेशन, हम जो खाते हैं उसका डाइजेशन करना। नो डाउट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। जो हम खाते हैं, जैसे हम कुछ खाते हैं तो उसमें से कार्बोहाइड्रेट बाजू निकालना, फैट बाजू निकालना, प्रोटीन बाजू निकालना, विटामिन मिनरल बाजू निकालना, उसका सही तरीके से एब्सॉर्प्शन करना, वो ब्लड में भेज के लिवर और बाजू जगह पे भेजना, काम इंटेस्टाइन का बहुत मेजर वर्क है। उससे ही हमें एनर्जी मिलेगी और उससे भी हमारा डे टू डे लाइफ चलता रहेगा। लेकिन बियॉन्ड दैट, यानी ये तो काम रहेगा जिसका जस्ट शायद 10% रोल रहेगा हमारा हमें हेल्दी रखने के लिए, लेकिन 90% रोल है ना बाकी के अलाइड चीजें, इम्यूनिटी, मूड एंड कॉग्निशन, मेटाबॉलिज्म, हार्मोन्स एंड जेनेटिक एक्सप्रेशन। हम चलते बोलते रहते हैं कि यार ये तो मेरे फैमिली में है, डायबिटीज तो मेरे फैमिली में ही है, ये तो मेरे फैमिली में है हार्ट डिसीज, या मेरा कोलेस्ट्रॉल तो मेरे फैमिली में, मेरे पिताजी को था, दादाजी को था, तो ये शायद जेनेटिक्स आता होगा। नो, जेनेटिक होगा, लेकिन उसको उसका जो हेल्थ में ट्रांसफॉर्मेशन करने का चीज शायद आपके अनहेल्दी गट से हो रहा है। तो ये एक एक पैरामीटर्स हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि उसका एक्चुअली रोल कैसा आता है, गट इसमें क्या इंपॉर्टेंस, इसमें कैसा रोल प्ले किया जाता है गट का, इम्यूनिटी या ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम या हार्मोन्स को हम वन बाय वन देखेंगे, राइट। तो आपने देखा होगा, खुद में भी एक्सपीरियंस किया होगा, या आपके आजू बाजू में आपने देखा होगा, या फैमिली मेंबर में आपने देखा होगा, सीजन चेंज इम्यूनिटी डाउन, ओके, सीजन चेंज फीवर आ गया, सीजन चेंज सर्दी खांसी हो गई, सीजन चेंज हो गया। तो साल में बहुत बार हम ये फेस करते हैं छोटी छोटी चीजें, और कुछ लोग देखते हैं कि बहुत हेल्दी है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी चेंज हो जाए, इतना ज्यादा उनको कुछ होता ही नहीं है। तो ये चेंजेस शायद आपके गट से कनेक्टेड है, बिकॉज 70% ऑफ अपर इम्यूनिटी सिस्टम लाइव्स इन योर गट। ये जो गट सिस्टम है, इसमें जैसे हमने बोला कि सेल का ये जो लेयर है, उसमें बाद में जो वॉल रहता है, हमारे जो इंटेस्टाइन का जो वॉल रहता है, उसमें बहुत अलग अलग काइंड के इम्यूनिटी के प्लेयर्स वहां पे रहते हैं, जैसे टी सेल, बी सेल, जिस नाम में नहीं जाना है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में नहीं जाना है, लेकिन ऐसी कुछ सिस्टम है जहाँ पे हमारी इम्यूनिटी ग्रो हो जाती है। आपको मालूम है इम्यूनिटी कैसे ग्रो हो जाती है? वेर एक्सपोज टू द न्यूअर थिंग, वहां पे हमारी बॉडी आइडेंटिफाई करती है कि दिस इज फॉरेन टू आवर, हमारे बॉडी का पार्ट नहीं है। जैसे बैक्टीरिया की एंट्री हो गई, वायरस की एंट्री हो गई, हमारे बॉडी का पार्ट नहीं, इसको अटैक करो, इसको डिस्ट्रॉय करो। ओके, ये अटैक करके डिस्ट्रॉय करने की जो एबिलिटी रहती है टाइम पे, तो उसको हम इन जनरल बोलते हैं कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी है, राइट। हमारी इम्यूनिटी कभी हमारे नॉर्मल बॉडी के पार्ट को आइडेंटिफाई नहीं करती, फॉरेन पार्ट। जैसे मेरे समझो मेरा इंटेस्टाइन का सेल ही है, या मेरा मसल का सेल ही है, हमारे बॉडी ने आइडेंटिफाई किया कि वो फॉरेन है, तो उसको डिस्ट्रॉय करना चालू करो, तो उसको बोला जाता है अटो इम्यून कंडीशन, है ना, हमारी इम्यूनिटी हमें ही खा रही है, हमें ही डिसीज पैदा कर रही है। तो ये जो चीजें है, ये जो इम्यूनिटी है, या इसको अटो इम्यूनिटी में कन्वर्ट करने का बहुत सारा रोल शायद गट में आता है, क्योंकि गट इज अ मेजर थिंग कि जहाँ पे हमें बहुत सारी चीजों का एक्सपोजर हो जाता है थ्रू फूड, थ्रू दिस बैक्टीरिया कमिंग थ्रू द फूड, बहुत सारे केमिकल्स बाहर से आ रहते हैं, और उसको टैकल करने के लिए बहुत सारी ये इम्यूनिटी सिस्टम वहां पे दे चुके हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मसला है कि हमारे जो हम आज जो कोविड ने सिखाया है, या शायद कोविड या कोविड के बाद में जो 2 साल में बहुत सारे लोगों ने इम्यूनिटी के बारे में सोचना चालू किया है, इम्यूनिटी के बारे में लिखना चालू किया है, पढ़ना चालू किया है, इम्यूनिटी के बारे में अवेयरनेस करना चालू किया है, तो अल्टीमेटली रोल आ जाता है फिर उसके बारे में हमें अपना गट के बारे में सोचना भी जरूरी है, क्योंकि 70% काम हमें यहाँ पे करना है। तो ये सारे चीजें हैं, ये सारे डिसबायोसिस, वो जो घना जंगल, वो डार्क जंगल आपने देखा जहाँ पे सारे पैथोजन पैदा हुए थे, वो डिसबायोसिस वाला जब एनवायरनमेंट रहेगा, तो ये सारे डिसीजेस को कनेक्टेड है। ये साइंस ने प्रूव किया है कि अल्टीमेटली ये डिसबायोसिस से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, प्लस सिंपल एक्जिमा, सोरियासिस, अस्थमा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, राइट, अर्थराइटिस का रूमेटॉइड फैक्टर, बहुत सारे कोलाइटिस और क्रॉन्स डिसीज जो इन्फ्लेमेटरी बॉल डिसीज हम बोलते हैं, सिंपल जो फाइब्रोमाइल्जिया, यानी पूरा दिन भर हमें कुछ तो लो एनर्जी जैसा लगना, या बॉडी एक लगना, यहाँ पे इधर उधर पेन होना, ये सारी जो चीजें हैं कनेक्टिंग टू द डिसबायोसिस एंड कनेक्टिंग टू द अल्टर इम्यूनिटी बिकॉज ऑफ दिस।
ओके बहुत सारे मेडिकल टर्म यहाँ पे डिस्कस होगा क्योंकि चाह रहा नहीं, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिखाना है कि हाउ इट इज कनेक्टेड एंड कितना बड़ा इम्पैक्ट हमें एक छोटा सा चीज हमें कर सकता है। नेक्स्ट है ये जो कॉमन हम बोलते हैं ना कि बटरफ्लाइज इन स्टमक, दैट इज ट्रू एग्जैक्टली, बिकॉज हमारा ब्रेन और गट का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ये जब मेरे पढ़ाई के दरम्यान जब मैं सर्च करा तो दिस वाज वेरी अमेजिंग थिंग आई रियलाइज। अभी तक हम बोलते थे कि हमारा ब्रेन है, हम ह्यूमंस आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ह्यूमंस जो पूरे एनिमल किंगडम में डोमिनेट कर रहे हैं, पूरे अर्थ में हम डोमिनेट कर रहे हैं, बिकॉज हम बोलते हैं कि हमारे सुपर ब्रेन के कारण। तो वो एक ब्रेन है और दूसरा सुपर ब्रेन हमारे गट में है। बहुत सारे ऑलमोस्ट नर्व्स जो रहते, चेता तंतु जिसको बोला जाता है, जो नर्व्स रहते, दैट 500 मिलियन नर्व्स यानी सेकंड टू द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड से भी ज्यादा, ब्रेन से सेकंड नंबर में नर्व्स गट में रहते। ये दिस इज अगेन नॉट बाय चांस, ओके। और गट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ब्रेन थ्रू अ वेगस नर्व। तो इनके बातें चलती रहती, जैसे माँ और बेटी को फोन दिया जाए तो दिन भर जैसे उनकी बातें चलेगी, बातें खत्म नहीं होगी, तो इस तरीके से ब्रेन और गट की बातें चलती रहती है। तो नर्व्स के द्वारा ब्रेन सिग्नल भेजता है गट को। तो हम जो बोलते हैं बटरफ्लाइज इन स्टमक, वो एक्चुअली हैपन होता है जो स्ट्रेस और जो एंग्जाइटी कंडीशन, इसके कंडीशन में थोड़ा सा हमें वो फीलिंग शायद हमारे स्टमक के अराउंड, गट के अराउंड हो सकती है। डिस्टर्ब गट बहुत सारे केमिकल्स बैक्टीरिया क्रिएट करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर अल्टर करते हैं और उसका कनेक्शन डायरेक्टली ब्रेन को आ जाता है। कैसे? ऑलमोस्ट 90% ऑफ सीरोटोनिन, जिसको हैप्पी हार्मोन बोला जाता है, वो गट में प्रोड्यूस हो जाता है। दिस इज साइंटिफिक फिगर्स। 50% ऑफ डोपामाइन, जो रिवॉर्ड सेंटर जो बोला जाता है, जो हमारे काम के रिवॉर्ड्स के बाद जो हम मजा लेते हैं या मोटिवेट हो जाते हैं, वो जो डोपामाइन से हो जाता है, उसका प्रोडक्शन गट में होता है। अलग अलग टाइप के अभी तक जो साइंटिस्ट ने ढूंढे हैं वो 30 न्यूरोट्रांसमीटर्स गट में तैयार होते हैं, ओके। सो इट इज अ केमिकल कनेक्शन नर्व्स के द्वारा। वेगस नर्व्स एक बड़ा नर्व रहता है, बड़ा चेता नर्व रहता है, वो ब्रेन के हिसाब से हमारे इंटेस्टाइन में या हमारे गट में आ जाता है। वो अल्टर करता है बिहेवियर, वो शायद इन्फ्लुएंस करता है गट बैक्टीरिया का पॉपुलेशन, और गट हेल्थ बैक्टीरिया के हेल्थ के हिसाब से बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर, बहुत सारे केमिकल्स क्रिएट हो जाते हैं जो ब्लड द्वारा डायरेक्टली ब्रेन की तरफ जाते हैं और ब्रेन को अल्टर करते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। आज जो वेव्स निकली है, आज जो पोस्ट कोविड आपने देखा है कि बहुत सारे मेंटल हेल्थ के इश्यूज निकल पड़े हैं बहुत सारे सालों से, जो जैसे मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, मेंटल हेल्थ के सारे इश्यूज निकल आ रहे हैं, उसका बहुत सारा कनेक्शन गट में है। और हमने हमारे क्लाइंट्स में देखा है, शायद हमारे क्लाइंट्स वेट लॉस के लिए हमारे पास आ जाते हैं, डायबिटीज रिवर्सल के पास आ जाते हैं, लेकिन जब उनका जो हैप्पीनेस आफ्टर 1 मंथ दिखता है ना, वो सारा जो, और उनके फैमिली मेंबर भी नोटिस करते हैं। कल हमने एक जैसा अपना यूट्यूब इंटरव्यू है, एक पेरी मेनोपॉजल वुमन का हमने इंटरव्यू लिया था उनके हेल्थ इंप्रूवमेंट के बारे में जानने के लिए। तो सी वॉज टॉकिंग कि मेरे हस्बैंड नाउ इज हैप्पीएस्ट हस्बैंड ऑन द अर्थ, क्योंकि पहले मैं उन्हें बहुत परेशान करती थी, और विद दिस गट ट्रांसफॉर्मेशन मेरा 1 महीने में या 1.5 महीने में इतना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इतना मेरा मूड और इसके सारे स्विंग्स कंट्रोल हुए कि नाउ ही इज वेरी हैप्पी। पहले मुझे उन्हें संभालना पड़ता था, मेरे छोटे छोटे मूड्स को तरफ उनको देखना पड़ता था, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। उसका रीजन शायद यहाँ पे है कि गट बैक्टीरिया, या जैसे गट ट्रांसफॉर्मेशन होता है वैसे ये सारे केमिकल्स अच्छा पैदा होना चालू हो जाता है, और इंटरनली हमें वो हैप्पीनेस देना चालू कर देते हैं, ओके। तो यहाँ पे साइंस ने दिखा है कि जिनको डिप्रेशन है उनके 50% लेवल्स जब ये सेरोटोनिन के कम रहते हैं। और सेरोटोनिन क्या है? एक केमिकल्स है जो हमारे जो प्रोटीन्स का अमीनो एसिड रहता है, ट्रिप्टोफैन का कन्वर्जन करके गट बैक्टीरिया सेरोटोनिन हमारे गट में तैयार करते हैं, और वो सेरोटोनिन हमें हेल्प करती है स्लीप, अच्छा सा नींद आने में काम करती है, हमारा मूड मेंटेन करने में काम करते हैं। हमारे क्रेविंग्स, सेरोटोनिन सही नहीं रहेगा तो क्रेविंग, स्वीट के और सॉल्टी फूड की क्रेविंग होते रहते हैं। हमारा गिल्ट का फीलिंग शायद उसके लिए कनेक्टेड है, हमारा जो वरीनेस है, एंग्जाइटी है, ये छोटी छोटी चीजें, या एक्स एंड पेन्स होते रहना, शायद हमारे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स चीजें काम में आता है, लेकिन प्रोमिनेंटली सेरोटोनिन का इसमें रोल है। और आपके गट हेल्थ के इंप्रूवमेंट के साथ में जैसे सेरोटोनिन अच्छा होने लगता है, तो इसमें बहुत सारी मूड्स हमने अल्टर हुए और चेंजेस हुए देखे हैं, राइट। तो गट हेल्थ के साथ साथ में जस्ट एडिंग इन द पॉइंट की सेरोटोनिन इंप्रूव करने के लिए ऑलरेडी वी आर स्पिरिचुअल ग्रुप, तो मेडिटेशन हम जानते ही है, हमारा लाफ्टर है, फिजिकल एक्टिविटी है, एक एस्टैब्लिश डेली रूटीन है,
सन सही तरीके का सन एक्सपोजर है, राइट स्लीप साइकिल है, वो एड ऑन करती है सेरोटोनिन इंक्रीज करने के लिए और हमारा मूड स्टेबलाइज करने के लिए और उसका मैक्सिमम एडवांटेज लेने के लिए। तो नेक्स्ट इज डोपामाइन। डोपामाइन क्या काम करता है? वो एक रिवार्ड देने का काम करता है, राइट? जैसे हमने नया घर खरीद किया, हमने एक कार परचेस किया और उसका फोटो हमारे सोशल मीडिया में डाला, लोगों ने थम्स अप लाइक किया, जो हमें जो उसके रेसिप्रोकल जो ड्राइव मिलता है, जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, जो थोड़ा सा मोटिवेटिंग और अपलिफ्टिंग का काम जो मिलता है ना, वो शायद डोपामाइन करता है आपके साथ। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि ये चीज क्या, लेकिन नहीं, वो उतना नहीं आया, क्लिक नहीं आया, ये चीज क्या है, मैंने ये खरीद किया, ये किया, लेकिन वो मूड नहीं बन रहा है, वो सारी चीज नहीं हो रही है, सारा डिप्रेसिव फील आ रहा है, तो शायद वो डोपामाइन डेफिशिएंसी के कारण होगा। आप रात को सोते हैं, नींद जल्दी नहीं आती सेरोटोनिन के कारण, सुबह उठ नहीं पाते, शायद वो डोपामाइन डेफिशिएंसी के कारण। तो ये सारे, ये जस्ट दिस इज अ ग्लिम्स की ये जो न्यूरोट्रांसमीटर चेंज हो जाते हैं, तो डे टू डे लाइफ जो आपका छोटा सा मूड अल्टर है, या छोटी सी चीजें आपको डिफिकल्ट लग रही है, छोटा सा आपको ये एंग्जाइटी या फियर लग रहा है, शायद ये गट हेल्थ से कनेक्शन है, या गट हेल्थ से आप वो सिम्टम्स दिख रहा है कि आपको अब सीरियसली गट हेल्थ की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट इज गट एंड स्लीप। बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, दोनों वाइस वर्सा, दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। आपको डिस्टर्ब स्लीप गट हेल्थ को अफेक्ट करता है, और गट हेल्थ के चेंज माइक्रोबायोटा शायद आपके स्लीप को अल्टर करते हैं। आपको जल्दी नींद नहीं आ रही होगी, या आप जल्दी सो नहीं पा रहे हो, तो शायद वो अल्टर गट के साइन है। बहुत बार लोग ना, आपने देखा होगा कि आपने ट्रैवल कर चुके हैं, ट्रैवल का टाइम शायद अलग हुआ था और सोने का टाइम डिफिकल्ट हुआ आपको, या सोने के टाइम बहुत चेंज होगा। आज शायद आपकी आदत है 9-10 बजे सोने की, और ट्रैवल के कारण आपने शायद 12 बजे या 1 बजे सोना पड़ा आपको, या कुछ फंक्शन था इसलिए आप लेट सोए। तुरंत इमीडिएटली दूसरे दिन आपने एक्सपीरियंस किया होगा, आइदर यू एक्सपीरियंस कॉन्स्टिपेशन, या आपको एसिडिटी हुआ होगा, या आपको रिफ्लक्स ज्यादा बड़ा हुआ, या कुछ आपको एक पिंपल निकल के आया होगा। तो ये सारे साइन है कि ये इतना स्ट्रांगली इमीडिएटली एक चीज डायरेक्टली गट को लिंक कर देता है। या आपने शायद कुछ भी फीवर या कुछ बीमारी के कारण आपने एंटीबायोटिक लिया होगा, और एंटीबायोटिक ने एक पूरा का पूरा कॉलोनी गट बैक्टीरिया का निकाल दिया होगा। उसके बाद में जो 15 दिन 1 महीने शायद आपका स्लीप का हैबिट अल्टर हुआ होगा, या कुछ स्लीप में चेंजेस हुए होंगे। तो ये रीजन है, बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है गट हेल्थ विथ योर स्लीप। नेक्स्ट पार्ट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस चीजें बहुत अफेक्ट करता है गट में, और उसका साइंटिफिक रीजन है, उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, दिस इज व्हाट, कि जो हमारा जो गट हेल्थ है, या हमारा जो इंटेस्टाइन है, जो जैसे मैंने बताया कि एक सेल का लेयर रहता है, एक दूसरे को सेल स्ट्रांगली कनेक्टेड रहती है, ये पेशीज कनेक्टेड रहती है, सिंगल लेयर रहता है, राइट? उसके ऊपर एक म्यूकस का लेयर रहता है। म्यूकोस यानी जैसे हमें सर्दी खांसी हो जाए तो जो नाक से थिक सिक्रेशन आ जाता है, उसको म्यूकोस बोलते हैं। ये म्यूकोस का एक लेयर रहता है, स्ट्रॉन्ग लेयर रहता है, और उसके ऊपर और एक म्यूकोस का लेयर रहता है। जो सेकेंड म्यूकोस का लेयर रहता है, वहां पे ये बैक्टीरिया रहते हैं। आपके स्ट्रेस के कारण बहुत सारे चेंजेस बॉडी में होते हैं, और उसका एक इफेक्ट रहता है कि म्यूकस का लेयर थिन होना चालू हो जाता है। तो आपका स्ट्रेस है, खाने का अल्टर चीजें हैं, एक चीज साथ में नहीं रहती। स्ट्रेस के साथ में बहुत सारे अल्टर बिहेवियर के कारण बहुत सारे इंडल्जेंस होता है, बहुत सारे खाने की पीने की चीजें बदलती है, खाने की लाइफस्टाइल बदलती है, खाने के टाइमिंग बदलते हैं, शायद उसमें कुछ हम दवाएं भी लेते हैं, तो सबका एक कंबाइन इफेक्ट होके ये जो म्यूकस का लेयर है वो ऑलमोस्ट शेड ऑफ होना चालू हो जाता है। साथ साथ में अनहेल्दी बैक्टीरिया उसमें ग्रो होना चालू हो जाते हैं। और अब क्या हो रहा है, उस सेल्स ये सेल है डायरेक्टली एक्सपोज हो जाते हैं, ये सेल दूसरे को एक टाइट जंक्शन से कनेक्टेड है, तो ये बैक्टीरिया के केमिकल्स, टॉक्सिन्स अब ये सेल के ऊपर काम करना चालू हुए, इनके जंक्शन उन्होंने तोड़ना चालू किया। अब वो जो केमिकल्स, जो शायद जो टॉक्सिन्स जो फूड में आते थे या जो बैक्टीरिया पैदा करते थे, वो शायद उसको रेजिस्टेंस था, अब वो ये लीक होना चालू हुआ है। इस कंडीशन को लीकी गट बोला जाता है। लीकी गट इज अ बिग साइंस, बहुत सारा वहां पे रिसर्च चल रहा है। तो कुछ केमिकल्स जैसे लाइपोपॉलीसैकेराइड, एलपीएस नाम का एक केमिकल है, जस्ट इन कॉन्टेक्स्ट में बताना चाहता हूँ। तो एलपीएस जब जाता है लाइपोपॉलीसैकेराइड से लीकी गट से चला जाता है सेल के वॉल में, तो यहाँ पे तो इम्यून सिस्टम बैठी है, यहाँ पे तो केमिकल्स तैयार करने के लिए, इम्यूनिटी सिस्टम जलाने के लिए, फायर करने के लिए तो बैठे। तो जैसे ये केमिकल्स, ये फॉरेन मटेरियल वहां पे आना चालू हो जाता है, तो स्ट्रांगली फिर से इम्यून रिस्पॉन्स आना चालू हो जाता है, सूजन होना चालू हो जाता है, ये इन्फ्लेमेशन, ये टॉक्सिन्स। अब ये हमारे जो इंटेस्टाइन उसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सप्लाई ब्लड का और
लिम्फेटिक का, तो वहां से ये टॉक्सिन्स पूरे शरीर में जाना चालू हो जाता है। तो आपकी जो रूमेटेड आर्थराइटिस है, आपकी जो आर्थराइटिस या बॉडी में इधर उधर जो सूजन चालू हुआ है, शायद यहाँ से ये लीकी गट से यहाँ उसका ओरिजिन हुआ है, और उसका डायरेक्टली शायद इनडायरेक्टली उस स्ट्रेस से कनेक्शन था। तो आप जान पाओगे कि वो जो छोटा सा स्ट्रेस है, या जो आप स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए इतना हम स्ट्रेस देते हैं, तो स्ट्रेस जाए यहाँ से कनेक्टेड जो इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, और ये जो रूट कॉज है यहाँ पे हमें सॉल्व करना है। तो जब जब हम गट हेल्थ का बात करते हैं, तो गट हेल्थ इज नॉट जस्ट योर फूड, ये सारा चीजें जो मैं लास्ट में मैं बताने वाला, जो सबका कॉम्बिनेशन, की क्या कॉम्बिनेशन चाहिए हमें हेल्दी होने के लिए, कि दिस इज व्हाट साइंस इज टेलिंग अस और साइंस इज प्रूविंग अस, राइट। नेक्स्ट इज ओबेसिटी एंड गट कनेक्शन। इसके पहले ना, जब मैंने मेरा वेट लॉस का जब सोचा था, वेट लॉस के बारे में मैं बात कर रहा था, तो सबसे पहले ट्रेडिशनल वे से आई जस्ट तो सिंपल चीज रहती है, हम कैलोरी काउंट करते रहते हैं, कैलोरी इन कैलोरी आउट, टेम्पररी दैट इज ओके, लेकिन नाउ डेज साइंस हैज प्रूव्ड कि आपका जो ओबेसिटी है, और ओबेसिटी के साथ में आने वाला, मोटापा के साथ में आने वाली जो बहुत सारी जो बीमारियां हैं, उसका गट से कनेक्शन है। और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, ऐसे कुछ रैट या माउस पैदा किए लैब्स में, जो उनके गट में बिल्कुल ही कुछ माइक्रोबाया या कुछ बैक्टीरिया नहीं थे, दैट वाज एक्सपेरिमेंटली क्रिएटेड। तो उसमें कुछ अलग अलग 3 ग्रुप्स के जो ह्यूमंस है, उनके बैक्टीरिया माइक्रोबायोटा ट्रांसफर किए गए। पहले रैट में, पहले माउस में उन्होंने ट्रांसफर किया, एकदम हेल्दी, जिसका बीएमआई अच्छा है, अच्छा वेट है, ओके, मेटाबॉलिज्म सही तरीके से, उसके बैक्टीरिया दिए गए, तो वो हेल्दी डेवलप हुआ, जो उसका जो डेवलपमेंट था रैट का और माउस का, राइट। उसके बाद में एक ओबेस इंडिविजुअल का, या ओबेस कम्युनिटी, या ओबेस जो ग्रुप ऑफ पीपल का बैक्टीरिया कंबाइन करके एक दूसरे इसमें डाला गया, तो वो डेवलपमेंट में वो फैटी हो गए, वो जो चूहा तो मोटा हो गया, ओके। तीसरे चूहे में, तीसरे रैट में डाला गया, जो अंडरवेट था, थीन था, बहुत दुबला पतला था, उसके बैक्टीरिया डाले गए। दिस एक्चुअली एक्सपेरिमेंट ना हुआ है, और उसके ऑलरेडी रिसर्च पेपर पे तो वो पतला हो गया। दिस वाज अ बिग डिस्कवरी की ये सारा चीज नाउ डेज साइंस इज गोइंग थ्रू, कि हम कुछ ऐसे आर्टिफिशियल हार्वेस्ट करके इसके ऊपर काम कर सकते हैं। शायद आने वाले 10-15 साल में ये सारी चीजें हो जाएगी, कि जो आप एक्सटर्नली कॉम्बिनेशन लेके टैबलेट्स के द्वारा, और ये सारी चीजें अल्टर करेंगे। टाइम है उसको ये सारी चीजें आने के लिए, और उसको सेफ्टी बनाने के लिए, लेकिन दिस इज व्हाट हम देखते हैं, कि हमारा जो गट बैक्टीरिया है, ये उसका जो पॉपुलेशन है, ये सारी चीजें हमारे पास साथ हो रही है, राइट। और कभी कभी हम हमारे ओबेसिटी नहीं कंट्रोल करने के लिए विल पावर को बोलते हैं, अरे मुझे विल पावर नहीं है, शायद वो विल पावर भी गट बैक्टीरिया के केमिकल्स के कारण वो वहां पे कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो दिस इज नॉट जस्ट ओबेसिटी, ये सारे जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स है, जो आज आप देखते हो कि एक ही पर्सन को डायबिटीज भी है, उसको बीपी भी है, और उसको कोलेस्ट्रॉल भी है, दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो ये जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, आज घर घर में जो बीमारी है, डायबिटीज किसी को है, कोलेस्ट्रॉल सबको, हर एक के घर में दिख रहा है, गाउट दिख रहा है, किडनी की कंडीशन दिख रही है, नॉन अल्कोहलिक, पहले जमाने में लीवर खराब होता था अल्कोहल के कारण, आज नाउ दिस इज वेव्स, यूएस में बहुत सारे लीवर ट्रांसप्लांट हुए हैं, नॉन अल्कोहलिक लीवर सिरोसिस, जो अल्कोहल भी नहीं लेते, लेकिन उनके लीवर में फैट डिपॉजिट हो रहा है, और उसके लीवर खराब हो रहे हैं। तो ये सारे जो जो नया तरीके का पैंडेमिक और एपिडेमिक आ चुका है मेटाबॉलिक सिंड्रोम का, उसका मेजोरिटी रीजन यहाँ पे गट तक आ जाता है। तो जब आप इसके बाहर आना चाहते हो, जस्ट दवाइयाँ नहीं काम करेगी, जस्ट थोड़ा मोटा सा छोटा मोटा चीज अल्टर नहीं करेगा, इसको गट हेल्थ के बारे में हमें काम करना बहुत जरूरी है। तो मार्क माय वर्ड, बहुत आसान भी है, सही तरीके से प्रिंसिपल आप समझ गए तो ये सारी चीजें लाइफ स्टाइल में लाना बहुत आसान है। एक बार उसकी हमें सही तरीके से फॉर्मेट में हमने इम्प्लीमेंट किया, तो इसमें हम बहुत सारे लोग, इसमें हम काम करते हैं, इसमें बहुत सारे लोगों का हमने रिवर्सल देख चुके हैं। अब ये पिक्चर है, ओके, जस्ट जो से देखिए, अभी तक हमने साइंस डिस्कस किया, आज अभी तक हमने कॉज डिस्कस किया, अभी तक हमने देखा कि व्हाट इज अल्टर गट या गट हेल्थ क्या है, या एक्चुअली सारा चीज देखा। अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन की, और ये सॉल्यूशन इस पिक्चर में है। क्या लगता है आपको, ये पिक्चर देख के आपको क्या लगता है, ये पिक्चर में क्या सॉल्यूशन लगता है आपको? एनीबडी यू कैन जस्ट राइट इन। नेचुरल जो ऑर्गेनिक Yes, yeah. आर्ट करते हैं, तो वहाँ यस, पे बिल्कुल और कूल ग्रीनरी है। है, और क्या है। एग्जैक्टली, ग्रीनरी ग्रीनरी, एटमोसफेयर भी मैटर करता है।
जस्ट पिक्चर या लैपटॉप पे आर्टिफिशियल पिक्चर भी मैंने जस्ट यहाँ पे देखा तो ये जस्ट सूदिंग लगा ना, ग्रीन लगा ना, तो यही चीज हमने अल्टर की इस 50 साल में, 100 साल में। आज जस्ट देखो कि आपके शायद परदादा के जमाने में क्या चीज करते थे, वहां पे खुद के खेत थे, ऐसे कुछ एनवायरनमेंट में हम रहते थे, वहां पे उस टाइम पेस्टिसाइड्स नहीं थे, कोई भी ऐसे अल्टर चीज नहीं थी, बहुत सारा फिजिकल एक्टिविटी था, फास्ट प्रोसेस फूड नहीं था। और आज के जमाने का जिसको मैं हम राक्षसा डेमन बोलते हैं, शुगर नहीं था उस जमाने में, राइट। तो ये सारी चीजें नहीं थी। और ऐसा आज आप देखते हो कि आपने जैसे हाथ फैलाया तो एक फूड मिलता है हमारे साथ में, फूड बहुत एम्पल अवेलेबल है आज, और सारा प्रोसेस फूड है, ये सारी चीजें नहीं थी। तो ये सोल्यूशन है, यहाँ पे हमें जाना पड़ेगा। नॉट पॉसिबल, 100% पॉसिबल नहीं। आज मैं पुणे में रहता हूँ, एक फ्लैट में एसी लगा के आपके साथ बात कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है मेरा गट अल्टर हुआ तो यहाँ पे 100% वहाँ पे उस झोपड़े में, उस एनवायरमेंट में हम जा पाओगे क्या? नहीं। 100% आई एग्री कि 100% वो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन उसका मैक्सिमम हम प्रयास कर सकते इस दायरे में रह के। 100% तो निग्लेक्ट करके तो नहीं होने वाला। 10 साल में पूरा हमारा शरीर पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, पूरा हमारा सारी बीमारी लग जाएगी, और जो जिस स्टेज पे अभी बीमारी है और भी ज्यादा प्रोग्रेस हो जाएगी। और दवाइयाँ से सप्रेस करके दैट इज नॉट अ सोल्यूशन, क्योंकि वो टेम्पररी है। आपके किसी को डायबिटीज है, किसी को बीपी, दवाई 2 दिन के लिए रुकवा के देखो क्या हो जाता है। तो अभी तक क्या कर रही थी वो दवाई? जस्ट इट इज वॉज सप्रेसिंग, राइट। तो चलते हैं आगे, राइट। तो ये सॉल्यूशन अब हम थोड़ा सा डिकोड करेंगे कि ये सॉल्यूशन को जो दिखता है हमें, ये सॉल्यूशन हमारे लाइफ में हम स्टेज वाइज स्टेज कैसे ला सकते हैं। ओके, तो अभी क्या हो रहा है, वी लाइव इन ओवरफेड, अंडर नरिश एंड हाइपर मेडिकेटेड वर्ल्ड। प्रोसेस फूड इज न्यू नॉर्मल। 60% हमारे खाने में प्रोसेस फूड है, 30% एनिमल प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, 10% प्लांट है। एक्चुअली दिस शुड बी रिवर्स, 90% प्लांट एंड फ्रूट बेस्ड हमारा होना चाहिए। ओके, बहुत सारी चीजें हमारे पैकेज फूड आ जाती है, उसमें बहुत सारे एडिटिव्स रहते हैं, शायद उसको हम सेफ मानते हैं, जनरली उसको सेफ माना जाता है, लेकिन गट हेल्थ के लिए चीजें नहीं है। हमारे पास जो सब्जियां आती है, बहुत सारे जो फूड्स आते हैं, उसमें बहुत सारे हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड्स रहते हैं। हमारी इंडिया में, स्पेशली इंडिया में ना, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री इज नॉट एट ऑल रेगुलेटेड। कितना पेस्टिसाइड आप खा रहे हो, यू डोंट नो, राइट। उसमें ग्लायोफॉस्फेट नाम का एक चीज है। जब मैं बचपन में मेरे पिताजी के साथ हमारे खेती में घूमता था ना, तो वहां पे हम देखते थे कि तणनाशक हर्बिसाइड्स वहां पे डाले जाते थे। और तो मैं हमेशा सोचता था कि ये जो बाजू में गेहूं है, वो गेहूं में वो तणनाशक काम क्यों नहीं करता है। तो पिताजी बोलते थे कि नहीं, वो ऐसे स्पेशलाइज बना है कि वो सिर्फ तन ही निकालता। तो मुझे वो समझ में नहीं आता था। बाद में समझ में आया कि आज हमने इतना जेनेटिकली मॉडिफाई किया है, हमारे जो 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 फूड है, जो हमारे जो धान है, उसके जो खेत है, उसमें जितना जेनेटिकली मॉडिफाई किया है कि नाउ वो जेनेटिकली मॉडिफाई ऐसा किया है कि वो ग्लायोफॉस्फेट को, जो शायद वो जो गेहूं है, जवार है, वो जो जो खेत है, वो रेजिस्टेंट है। तो ग्लायोफॉस्फेट जो हर्बिसाइड में है, वो उनको किल नहीं करता, सिंपल बाकी के घास और गवत और जो अनवांटेड चीजें हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ग्लायोफॉस्फेट हमारे ह्यूमन सेल को भी कुछ नहीं करता है, सेफ है हम उससे। लेकिन वो बेचारा वो जो हमारे गट में जो माइक्रोबाइट है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है ग्लायोफॉस्फेट से। ओके, आप जो मिल्क ले रहे हो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आई एम वेजिटेरियन। ओके, वो मिल्क लेते हैं। ओके, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी मिल्क एंड ऑल, जस्ट एक ग्रेविटी में दिखाना चाहता हूँ कि आप जो मिल्क लेते हो, आपके घर में आपकी खुद की गाय नहीं होगी, और आपकी खुद के गाय को आप ऑर्गेनिक चारा नहीं दे रहे होगे, तो आप जो मिल्क ले रहे हो शायद वो बहुत डेंजरस है। जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप एक एक गाय को 1 लीटर दूध देने के लिए हमको 10 किलो चारा खाना पड़ता है। आपने सब्जियां खाने का सोचा तो दिन में 10 किलो सब्जी आप नहीं खा सकते, तो आपके शायद सब्जी में आने वाला वो पेस्टिसाइड्स लिमिटेड आ जाएगा, आता है उसमें, लेकिन शायद लिमिटेड है। लेकिन आप जब एक मिल्क पीते हो तो मिल्क में वो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ बायो कॉन्सेंट्रेशन। तो 10 किलो चारे वाला पेस्टिसाइड कॉन्सेंट्रेट करके आपके मिल्क में आपके पास आ जाता है। सिर्फ उसमें पेस्टिसाइड नहीं रहते, बहुत सारे जो एनिमल फूड आप खाते हो तो उसमें बहुत सारे एंटीबायोटिक्स रहते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स रहते हैं। तो ये सारा चीज आपके गट के ऊपर अफेक्ट कर रहा है। मेडिकेशंस, सर्दी आ गई, खांसी आ गई, कुछ भी आया तो एंटीबायोटिक, कोई भी डॉक्टर के पास जाओ, दैट ये सारा फीवर इज टू बी स्टार्टेड विद एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक पूरी कॉलोनी आपकी वो हेल्दी माइक्रोबायो का और हेल्दी बैक्टीरिया का कॉलोनी डिस्ट्रॉय करता है, और उसको लाने के लिए बहुत सारे साल आपको लग सकते हैं। प्रोटॉन पंप इनिबिटर, वो बहुत फैंसी नाम लगता है, प्रोटॉन पंप इनिबिटर वाली दवाई है, लेकिन उसका सिंपल नाम है एसिडिटी की गोली। घर घर में
शायद आप एंटीबायोटिक नहीं खाते होगे लेकिन आप एसिडिटी की गोली खा रहे हैं तो आपके गट में वो उसका इफेक्ट हो रहा है। ओके, एक्स एंड पेन्स के लिए चलते चलते हमें क्रूसिंग खाने की आदत है, हमें पेन किलर खाने की आदत है। ये मेडिकेशन आर नॉट हेल्दी फॉर योर गट माइक्रोबायोम। कुछ ना कुछ जो आदि पूरी स्पेसिस वाइप अप हो जाती है आपके इंटेस्टाइन में, उसको लाने के लिए आपको बहुत काम पड़ता है। तो बी कॉशियस, जब भी जरूरत है तभी मेडिकेशन लेना है, जरूरत ही नहीं है तो मेडिकेशन लेते हैं। बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स, उनको वायरल फीवर हम बिना मेडिकेशन के, मेरे बच्चों को भी हम बिना मेडिकेशन के ट्रीट करते हैं क्योंकि वी नो कि इसका क्या लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो रही है हमारा, बाद में हम आउटडोर्स नहीं जाते हैं, हमारा सन को एक्सपोजर कम है, विटामिन की डेफिशिएंसीज हो रही है। कोविड के बाद अब पूरा पूरा एनवायरनमेंट हाइपर स्टेरिलाइजेशन हो रहा है। कोविड में इतना स्टेरिलाइजेशन की आदत लगी कि हम हर चीज आप इतना क्लीन कर रहे हैं कि ये हमें हमें वो बैक्टीरिया जो आ जाते हैं वो एनवायरनमेंट से आते हैं। यू नो, हमारा जो गट बैक्टीरिया है वो कैसे तैयार हो जाता है, गट माइक्रोबायोम कैसे हमें मिलता है। हम जब हमारे माँ के पेट में रहते तब कुछ हमारा बैक्टीरिया, हमारा जो गट है स्टेराइल रहता है। जैसे हमारा बर्थ होता है, जब हम बर्थ कैनाल से पास हो जाते हैं नॉर्मल डिलीवरी में, तो बहुत सारा बैक्टीरिया हमें मिलता है। और साइंस बोलता है कि पहले हमारे लाइफ के पहले 1000 डेज में ऑलमोस्ट 99% जो हमारा करंट का बैक्टीरिया है जो हेल्दी होना चाहिए वो वहां से आ जाता है। तो इसीलिए तो प्रूव किया है उन्होंने कि जो सीजरियन सेक्शन से जो बच्चे आ जाते हो, जो बच्चे जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं लेते हैं, उनको लॉन्ग टर्म एडल्टहुड में बहुत सारी बीमारियों का कनेक्शन शायद गट हेल्थ से है। हमने हमारा सर्कैडियन रिदम डिस्टर्ब किया। व्हाट इज सर्कैडियन रिदम? हमारे बॉडी में हर एक चीज ना एक क्लॉक के हिसाब से चलते हैं। हमारे बॉडी का हर एक चीज का क्लॉक है। हम जब खाते हैं उसके टाइम जब एंजाइम्स और जो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होती है उसका एक क्लॉक है। हमारे जो सोते हैं, सोने के बाद में जो रिपेयर रीजनरेशन के मैकेनिज्म है, हम जो क्यों नींद लेते, क्योंकि हमारे बॉडी को रिपेयर की जरूरत है, कुछ चीजें रिप्लेनिश करने की जरूरत है, कुछ लॉस भरने की जरूरत है, कुछ नई चीजें तैयार करने की जरूरत है। उसका एक क्लॉक सेट हुआ है। शायद आप 12 बजे सोते हो और 9 बजे उठते हो, दैट इज नॉट अ गुड क्लॉक। हमारा जो सर्कैडियन रिदम है ना, नेचुरली इज कनेक्टेड टू द सनलाइट, सनलाइट से वो कनेक्टेड है। तो सनसेट के बाद में नेचुरली और हेल्दी वे से हमने 1 या 2 घंटे में वी शुड बी इन अ डार्क लाइट, और उसके 2-3 घंटे हमने सोना चाहिए। लेकिन क्या होता है सनसेट के बाद में वी आर इनटू वेरी स्ट्रांग लाइट। हम मोबाइल यूज करते सोते तक, हम बस टीवी का स्क्रीन देखते सोते तक, हमें सोते के टाइम मोबाइल देख के ही सोना रहता है, तो वो सारे लाइट सेंटर डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो एक क्लॉक डिस्टर्ब हो जाता है, वो क्लॉक फिर अल्टीमेटली गट हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकता है। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू। तो ये हमारा पूरा जो सिस्टम है और हमारा जो कल्चर अब ऐसे तरीके से डेवलप हो रहा है कि आपकी गट हेल्थ अच्छी ना रहे, आपकी गट हेल्थ डिस्टर्ब हो जाए। तो जब आप ये सारा चीज जान के आपका गट हेल्थ अच्छा करना चाहते हो तो ये एक्सीडेंटली नहीं होगा, ये बाय चांस नहीं होगा। उसको आपको कॉन्शियसली इंटेंशनली उसके लिए एफर्ट लाना पड़ेगा। दिस इज नॉट वन डे काम, या ये 1 हफ्ते का काम नहीं, 1 महीने का काम नहीं। दिस इज कंसिस्टेंटली छोटे छोटे चीज आप एक सही तरीके से प्लान तरह से करोगे तो ये सारी चीजें आपके साथ होने वाली है। तो बैक टू अगेन, जैसे मैंने पहला स्लाइड प्रोजेक्ट किया था कि स्पेशल कनेक्शन जो हमारा गट बैक्टीरिया है उसका प्लांट से। तो ये क्या कनेक्शन, बार बार मैं प्लांट बेस क्यों बोल रहा हूँ या प्लांट या फ्रूट में क्यों बोल रहा हूँ, कि उसका थोड़ा सा अगेन साइंटिफिक रीजन बोलते हैं। ओके, ओनली प्लांट्स एंड फ्रूट्स, जो प्लांट से चीजें मिलती है उससे फाइबर आ जाता है। हमारा नेचर ना बहुत वाइज है, जो न्यूट्रिशन हमारे पास दिया है ना, उन्होंने बहुत वाइजली क्रिएट करके दिया है, बहुत वाइजली पैक करके दिया है। फाइबर में जो पैक करके आता है वो हेल्दी है, फाइबर बिना वाला पूरा अनहेल्दी है। ओके, बिना फाइबर वाला क्या है, जब आप मैदे की चीजें खाते हो या जब आप फास्ट फूड खाते हो उसमें पूरा फाइबर निकल गया है। आप फ्रूट नहीं खाते के बजाय आप जूस पीते हो तो पूरा फाइबर निकाल के आप उसका जस्ट शुगर ले रहे हो, राइट। आप सोचो, आज आपने काउंट किया डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ऑलमोस्ट आप, ये जो मेरे हाथ में ग्लास है, नहीं ग्लास भर के आप शुगर दिन भर में खा रहे हो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि व्हाइट शुगर खा रहे हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोसेस फूड के द्वारा या व्हाइट शुगर आपके शरीर में जा रहे हैं। 50 साल पहले, 100 साल पहले आप देखो कि किसी ने एक जो गन्ना रहता है ना, गन्ना, पूरा गन्ना खाने की ताकत थी किसी में। शायद खाते हो गए पूरा गन्ना, लेकिन 3, 4, 10 गन्ने खाते हो गए क्या? नहीं। 1 चम्मच शुगर बनाने के लिए, डू यू नो, 1 किलो शुगर बनाने के लिए 100 किलो शुगर केन लगता है। ओके, वो 100 किलो शुगर बहुत सारे केमिकल प्रोसेस से आके फिर व्हाइट शुगर करके हमारे टेबल पे आ जाती है, और वो व्हाइट शुगर इज नॉट हेल्दी क्योंकि वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्रोसेसिंग है। छोटे छोटे फॉर्म ऑफ प्रोसेसिंग जहां से फाइबर निकाले जाते हैं वो हमारे गट को अफेक्ट कर देते हैं। क्यों फाइबर इंपॉर्टेंट है?
बिकॉज ये फाइबर ही ये बैक्टीरिया का या माइक्रोबायोटा का फूड है, राइट। तो जैसे हम कुछ खाना खाते हैं, समझो हमने गेहूं की रोटी खाई या हमने एक फल खाया, तो उसमें जो स्टार्च है उसका हमने ग्लूकोज में परिवर्तन किया और वो हमारे इंटेस्टाइन ने अब्सॉर्ब किया। लेकिन उसमें जो फाइबर है वो फाइबर हमारा गट, हमारे बॉडी में एंजाइम्स ऐसे है ही नहीं कि वो फाइबर ब्रेक करे, वो फाइबर ऐसे चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, वहां पे जो बैक्टीरिया है वो हैप्पी हो जाते हैं, वो फाइबर खा देते हैं, वो हैप्पी बनते हैं। तो बहुत सारे हैप्पी केमिकल्स और बहुत सारी चीजें हेल्थ के लिए वो वहां पे पैदा करते हैं और वो हेल्दी रहते हैं। तो आप सोचो कि ये कितनी डेंजर बात है कि जब हमारे खाने में डाइवर्सिटी नहीं होगी, ये जो फाइबर्स है ना, नेचर में एक ही टाइप का फल नहीं बना है, नेचर ने एक ही टाइप का प्लांट नहीं बनाया, नेचर ने एक ही टाइप का सब्जी नहीं बनाया, बहुत वेरिएशन है, बहुत वैरायटी है, बहुत अलग अलग टेस्ट है, अलग अलग कलर है। तो ये डाइवर्सिटी है, ये डाइवर्सिटी के जब हम खाते हैं खाएंगे तो उसमें डाइवर्सिटी ऑफ फाइबर मिलेगा और वो फिर डाइवर्स हेल्थी माइक्रोबाया का पॉपुलेशन बनेगा। तो आज का जो लर्निंग है कि हमें हमारे डाइट में बहुत सारा अनप्रोसेस हेल्दी तरीके का फाइबर रिच वाटर रिच फूड इंक्लूड करना है, उसका थोड़ा सा और भी एक्सप्लेनेशन आगे है। तो बहुत सारे लोगों ने ये आप सुनते होगे जब आप इंस्टाग्राम फेसबुक ओपन करते होगे, आपके डॉक्टर ने बोला होगा या आपके डॉक्टर ने स्पेशली आपके फीवर या आपके इल हेल्थ के दरमियान एंटीबायोटिक के साथ ये प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक भी दिया होगा, आपने बोला होगा कि एंटीबायोटिक की इल इफेक्ट निकालता है। तो दिस इज अ क्या बोलते हैं फॉर्मूला है, प्रीबायोटिक्स इज प्लस प्रोबायोटिक्स इज इक्वल टू पोस्टबायोटिक। व्हाट इज प्रीबायोटिक? प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक यानी ये बैक्टीरिया, प्रीबायोटिक यानी बैक्टीरिया का खाना। तो बैक्टीरिया का खाना खा के बैक्टीरिया पोस्टबायोटिक बनाते हैं, यानी एक केमिकल बनाते हैं या कुछ चीजें बनाते हैं कि जो हमें हमारे हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। तो प्रीबायोटिक प्लस प्रोबायोटिक इज इक्वल टू पोस्टबायोटिक। तो ये सब इज शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स आर द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पोस्टबायोटिक्स। ओके, तो जो ये जो बैक्टीरिया शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनाते हैं हमारे गट में, स्पेशली लार्ज इंटेस्टाइन में, ये हमारे इम्यून सिस्टम को शांत रखने के लिए, इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करने के लिए, कैंसर कंट्रोल करने के लिए, अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म हमारे हार्ट डिसीज, स्ट्रोक, डायबिटीज, वेट लॉस के लिए, या अपने मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये फॉर्मूला को देखा जाए तो इसमें कोई भी चीज इम्बैलेंस रहेगी या कम रहेगी तो अल्टीमेटली जो आंसर आ जाता है वो कम रहेगा। प्रीबायोटिक कम रहेगा यानी मेरे खाने में फाइबर्स कम रहेंगे, मेरे खाने में ज्यादा प्रोसेस फूड रहेंगे, मेरे खाने में ज्यादा फास्ट फूड रहेंगे, मेरे खाने में ज्यादा इन्फ्लेमेशन पैदा करने वाले चीजें रहेगी, जैसे गंदे ऑयल्स है या प्रोसेस फूड के डाले वाले बहुत सारे प्रिजर्वेटिव वो रहेंगे, तो प्रीबायोटिक्स कम रहेंगे। तो फॉर्मूला में एक चीज कम होगी तो ऑलमोस्ट पोस्टबायोटिक कम रहेंगे। या मैं एंटीबायोटिक ले रहा हूँ, दवाइयाँ ले रहा हूँ, या आई एम इन कांस्टेंट स्ट्रेस, तो मेरे बैक्टीरियाज वाइप हो रहे हैं, तो प्रोबायोटिक्स कम रहेगा, तो अल्टीमेटली पोस्टबायोटिक कम रहेगा। तो हमें हेल्थ भी रखने के लिए दोनों का सही तरीके से कॉम्बिनेशन करना बहुत जरूरी है। तो अब हम देखेंगे कि वो कैसे आ जाएगा कॉम्बिनेशन। तो ये जो मैंने स्टोरी शेयर की कि मेरा हेल्थ कैसा था, उसमें जैसे मेरे पिताजी का और मेरे फैमिली का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, मेरे खुद का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो उसमें हमने क्या क्या चीजें इंक्लूड की। ओके, सो दिस इज अ जनरलाइज, को बहुत सारी चीजें स्पेसिफिक इंडिविजुअल स्पेसिफिक रहती है, तो दिस इज जनरलाइज कॉन्सेप्ट मैंने शेयर कर रहा हूँ कि क्या मैंने रिप्लेस किया, जिस तरीके से मैं खा रहा था वो मैंने रिप्लेस किया। जस्ट सिंपल, व्हाट वाज द रिप्लेसमेंट? चाय जो मैं पीता था उसको मैंने ग्रीन स्मूदी से रिप्लेस किया। अब देखो मेरा लाइफस्टाइल कैसे था, या आप भी देख सकते हो। जब मैं उठता था तो मुझे इमीडिएटली चाय लगता था, बहुत बार बेड टी लगता था, चाय के साथ कुछ बेकरी का आइटम, बिस्किट वगैरह कुछ चीज लगता था। मुझे लगता था कि मैंने सोया है, तो बहुत सारा नींद के टाइम, मेरे स्लीप के टाइम बहुत सारा एनर्जी मैंने लॉस किया, तो इमीडिएटली उठते समय मुझे कुछ न कुछ चाहिए, चाय टोस्ट से कुछ चाहिए। उसके बाद में मेरा जो ब्रेकफास्ट रहता था वो पूरा ग्रेन वाला ब्रेकफास्ट रहता था, पोहा, इडली, उपमा, राइट। उसके साथ फिर से चाय हो जाता, बीच में 2-3 बार चाय हो जाता था। मुझे लगता था मैं फल खाता था, लेकिन हफ्ते में कभी तो एक बार फल खाता था, कभी इंसिस्ट किया था और मेरे प्लेट में कट करके मेरे सामने रखा होता, तो उसमें भी पूरा थोड़ा सा मैं लेके रखता था। लंच में बहुत सारा रोटी, चपाती, चावल खाता था, नाम के लिए सब्जी, सैलड का तो नाम ही उतना मुझे टाइम नहीं रहता, तो इतना चबा के खाओ सैलड, जल्दी जल्दी कुछ खाना था। फिर इवनिंग के टाइम कुछ स्नैक्स लगता था, चाय तो होना ही था उसके साथ में, क्योंकि मुझे लगता था कि यार एनर्जी कम हो रही है, प्रैक्टिस का टाइम था, बहुत सारा यहाँ पे एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल जाना था। और फिर आराम से डिनर होता था, जब टाइम मिले 9, 9:30, 10 बजे,
उसके बाद में रात में मुझे लगता था कुछ मीठा खाना चाहिए, आइसक्रीम होता था या कुछ मीठा था, चॉकलेट बीच बीच में खाता था, ये चलता रहता था। तो ये सारी चीजें हमने कॉन्शियसली रिप्लेस की। ये जो ग्रीन स्मूदी है उसमें रॉ वेजिटेबल्स रहते हैं, फ्रूट रहते हैं, ये सारे मॉर्निंग में जाना चालू हुआ, तो मॉर्निंग से ही फाइबर्स गट हेल्थ के लिए जाना चालू हुआ। जैसे सिंपल चेंज किया मैंने, चाय को रिप्लेस किया ग्रीन स्मूदी के, मॉर्निंग के पूरा चाय बंद किया और मॉर्निंग के चाय को ग्रीन स्मूदी से रिप्लेस किया, तो इमीडिएटली फर्स्ट वीक से मुझे हल्कापन, जो गैसेस और जो ब्लोटिंग थी वो कम होना चालू किया। तो मुझे समझा कि दिस इज रियली पावरफुल। उसके बाद में दिस इज व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग अ ब्रेकफास्ट। तो मैंने देखा और जस्ट जितना पढ़ा और जितना मैंने एक्सपीरियंस किया कि हमारे पूरे खाने में ना आज जो मॉडर्न लाइफस्टाइल में हो गया, तो ग्रेन बहुत हो गए, बैलेंस से जब ज्यादा ग्रेन हुआ है। ओके, हमारे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ही चालू हुआ था, एग्रीकल्चर जो रिवॉल्यूशन ये चालू हुआ था 10,000 साल पहले, ग्रेन प्रोक्योर करने के लिए ह्यूमन के सेटलिंग जो ये थे, जंगल से ह्यूमन सेटल होना चालू हुए थे, तो ग्रेन लेने के लिए चालू हुए थे। लेकिन मॉडर्न लाइफस्टाइल में हमने ग्रेन को बहुत एक्सेस किया है। ओके, ग्रेन का क्या प्रॉब्लम है, ग्रेन आर डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। दूसरी चीज है, आप देखो दो टाइप के फूड रहते हैं, लाइव फूड एंड अ डेड फूड। ओके, लाइव फूड यानी खुद उस जो फूड में खुद का पानी है, खुद का रस है। ओके, उसमें कुछ चीजें हमने निकाली और प्लांट की, तो शायद उसमें नया लाइफ निकले। जैसे फल है, फल की सीड्स हमने निकाले तो शायद नया पौधा वहां पे निकल जाता है, दैट इज कॉल्ड एज लाइव फ्रूट। ओके, उसके वर्सेस डेड फूड, हमने ग्रेन निकाले, ग्रेन तो ऐसे खाते नहीं, ग्रेन को हमने प्रोसेस किया, इतना प्रोसेस किया कि उसका पूरा सारा हेल्दी चीज निकाला, उसको मैदे में शायद कन्वर्ट किया, फ्लोर में कन्वर्ट किया, फिर उसकी चीजें हम खा रहे हैं, दैट इज डेड फूड। प्रोसेस फूड इज अ हाइट ऑफ डेथ, उसको डेड फूड ही माना नहीं, वो बहुत ही गंदा फूड है। ओके, तो इसका जो बैलेंस था पूरे खाने में, आप देखो जैसे आप मॉर्निंग में चालू कर जाते हो तो ब्रेकफास्ट में भी बहुत सारे ग्रेन हो जाते हैं, आपके जो लंच और डिनर के प्लेट में भी ऑलमोस्ट 80 to 90% ग्रेन ही रहता है। आप रोटी भी खाते हो, उसके साथ में चावल भी खाते हो, नाम के लिए सब्जी रहती है, नाम के लिए दाल रहता है, थोड़ा सा सैलड रहता है, राइट, और एंड में डिनर में और थ्रू आउट द डे बहुत सारा ग्रेन आ जाता है। तो हमने आई स्टार्टेड रिड्यूसिंग ग्रेन के जगह हेल्थी दालें, मिलेट्स इंक्लूड करना चालू किया। तो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग द ब्रेकफास्ट, और हमारे क्लाइंट के लिए एडवाइस करते हैं कि मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट का पूरा हमने ग्रेन ही निकाल दिया, उसके जगह हेल्दी चीजें हमने डालना चालू किया। दिस इज व्हाट माई लंच एंड डिनर प्लेट आसान है। ओके, एक 25% का फॉर्मूलाज हमने क्रिएट किया, जिसमें सैलड्स भी है, वेजिटेबल्स भी है, और ये सारे इंक्लूड करना चालू किया। ओके, तो अल्टीमेटली व्हाट वी आर टीचिंग, और हमने जो एक्सपीरियंस किया, इट इज हेल्दी गट के लिए या ओवरऑल हेल्थ के लिए वी एडवाइस 6 पिलर्स फिलोसॉफी। तो हेल्दी प्लेट, सही प्रोपोर्शन से, सही टाइम से सही चीजें डालना, जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम हम ट्राई करते कि लाइव फूड, जिसमें खुद का पानी है और खुद का ये है, नेचुरल स्टेज से, बहुत सारे नेचुरल फॉर्म में, कम प्रोसेस वाला फूड हमारे खाने में इंक्लूड कर सके। नेक्स्ट पार्ट है न्यूट्रिशन। हमारे करंट लाइफस्टाइल में बिकॉज ऑफ प्रोसेस फूड और बिकॉज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड बहुत सारा न्यूट्रिशन गैप रहता है। तो सही तरीके से सप्लीमेंटेशन का सोच करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी डेफिशिएंसी या कुछ विटामिन की डेफिशिएंसी से आपका गट माइक्रोबायोम अल्टर हो सकता है, तो वो न्यूट्रिशन का एक पिलर भी संभालना बहुत जरूरी है। होम फिटनेस, ओके, एक्सरसाइज, बहुत लोगों को लगता है कि यार मुझे टाइम नहीं है, या मेरे पास जिम का एक्सेस नहीं है, या बहुत लोग कुछ एक्सट्रीम्स करते हैं, जस्ट 20 मिनट्स बिल्डिंग के आसपास अपने दोस्तों और सहेली के साथ घूमना, बातें करके कम स्पीड में, उनको लगता है एक्सरसाइज हो गया, और फिर दिन भर सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो जाता है। या कुछ लोग एक्सट्रीम, बहुत एक्सट्रीम है, डायरेक्टली मैराथन और ये साइकिलिंग करना चालू कर देते विदाउट अंडरस्टैंडिंग देयर हेल्थ। तो एक सही तरीके से, सही कॉम्बिनेशन का वाला हेल्थ का और आपका एक्सरसाइज का प्लान होना चाहिए, जहाँ से राइट मॉर्निंग का डिस्ट्रीब्यूशन, मॉर्निंग का फोकस, एक 45 मिनट्स का एक्सरसाइजेस जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके बॉडी को मैच करता है, एकदम एक्सट्रीम नहीं करना, धीरे धीरे सिंपल 12 सूर्य नमस्कार से या 10-12 उठक बैठक से या 10-12 पुशअप से आप चालू कर सकते हैं, इन एडिशन टू 20 मिनट्स वॉक। फिर दिन भर का आपका शेड्यूल कर सकते हैं, एक जैसा कि अलार्म करने का, या जस्ट 45 एक घंटे के बाद में थोड़ा सा घूमना, थोड़ा सा वॉक करना, या क्या बोलते हैं एक्सरसाइज ऑफ हेल्थी लिविंग, जिसमें स्टेयरकेस तो है अवेलेबल है, लेकिन आप आपके लिफ्ट के या इससे जा रहे तो लिफ्ट अवॉइड करो, जहाँ पे हो सके थोड़ा सा मूवमेंट करना चालू करो, तो ये आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए काम करेगा। स्लीप हाइजीन रहना बहुत जरूरी है आपका, जैसे आज से चालू करो, जो लोग हेल्दी स्लीप कर रहे हैं उनके लिए तो
गुड न्यूज़ है कि आप 8-9 बजे 10 बजे सो रहे हो तो दैट इज़ वेरी गुड। लेकिन आप 12 बजे सो रहे हो, 1 बजे सो रहे हो, तो 1-1 घंटे से आपका टाइम रिड्यूस करना चालू करो नाइट का, और उतना ही जल्दी उठना चालू करो। आप 1 महीने के बाद या 21 डेज के बाद आपका बहुत सारा चीज़, मूड और एनर्जी अल्टर होते हुए देखोगे। ओके, सोने के पहले 1 घंटे डिम लाइट करना चालू करना है। सोने के पहले एटलीस्ट 2-3 घंटे स्ट्रॉन्ग लाइट का एक्सपोजर कम करना है। सोने के पहले बिल्कुल ना आना टू द मोबाइल। उठने के बाद भी इमीडिएटली मोबाइल देखने की आदत कम करना है। तो ये स्लीप हाइजीन मेंटेन करना चालू करो। नेक्स्ट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। यू आर ऑलरेडी ए स्पिरिचुअल ग्रुप, बहुत सारी चीज़ें आप इस ग्रुप से सुनते हो और आपकी प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस में करते हो, तो बहुत सारे नए नए टेक्निक्स आज हम यहाँ से सीखे और हमारे लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हमारे क्लाइंट भी सिखाते हैं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट सही तरीके से करना और डे टू डे लाइफ में इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। लास्ट पार्ट इज डिटॉक्सिफिकेशन। ओके, दिस इज नॉट अ गिमिकी टर्म जो आप बहुत सारे डिटॉक्स डाइट बोलते हैं। व्हाट इज अ डिटॉक्सिफिकेशन? हमारे बॉडी में बहुत सारा बाय प्रोडक्ट्स से बहुत सारा वेस्ट तैयार होता है और हमारे बॉडी को हेल्प करना वो वेस्ट निकालने के लिए। वो शायद वेस्ट आपके लंग्स से आपके सांसों की तरफ निकल रहा है, या आपके स्किन से जा रहा है, या आपके इंटेस्टाइन से जा रहा है, बहुत सारे जगह से वो वेस्ट निकल जा रहा है। अपने बॉडी को हेल्प करना, तो वो वेस्ट निकालने के लिए सिंपल चीज़ है कि आपकी बॉडी को आप अल्कलाइन बना सकते हो। अब ये क्या चीज़ है? नहीं, एसिडिक एंड अल्कलाइन। हमारे बॉडी में जो ब्लड रहता है या हमारे बॉडी में जो फ्लूइड रहता है ना, उसका एक पीएच रहता है। आपने स्कूल में देखा होगा ना, एसिडिक पीएच, और जिसमें लिटमस पेपर का कलर बदल जाता है, और अल्कलाइन पीएच। आपका जो सोप यूज करते हो आप, सारे सोप अल्कलाइन रहते हैं, राइट? तो हमारे बॉडी का जो पीएच रहता है वो अल्कलाइन रहता है, 7.4, 7.2 टू 7.4। तो जब हमारे बॉडी का पीएच अल्कलाइन रहता है तो सारी जो सिस्टम चलती है वो सही तरीके से चलती है। जब वो एसिडिक पीएच की तरफ जाता है तब हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन और इम्बैलेंस होना चालू हो जाता है। तो ये जो एसिडिक पीएच कैसे कैदा हो सकता है, कैसे कैसे क्रिएट हो जाता है? जब आपके खाने पीने की आदतें, आपके खाने पीने के शेड्यूल, आपके खाने में प्रोसेस फूड, आपके खाने में ये सारा आने वाला शुगर, आपके खाने में आने वाला जो अनवांटेड केमिकल्स, ये सारा एसिडिटी पैदा कर देता है। आपका स्ट्रेस शरीर एसिडिक बना सकता है, आपका स्लीप का पैटर्न एसिडिक बना सकता है। तो उसको अल्कलाइन बनाने की सिंपल सोल्यूशन है कि जो प्लांट बेस्ड, जितना ज्यादा आप फाइबर खाओगे, जैसे मैंने जो ग्रीन स्मूदी का पिक्चर बताया, जो दैट ग्रीन स्मूदी इज अल्कलाइन। बहुत सारे फूड अल्कलाइन रहते हैं, बहुत सारे सैलड्स और सब्जियां अल्कलाइन रहती है। तो जितना ज्यादा आप प्लांट बेस्ड खाओ जाओगे तो उतना ज्यादा आपका बॉडी अल्कलाइन बनते जाएगा और उतना ज्यादा नेचुरली डिटॉक्स होना चालू हो जाएगा, राइट? परसों हम एक हमारे पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस के लिए जो हमारे पास एक लेडी आई थी, उनका हम इंटरव्यू ले रहे थे। तो उन्होंने बोला कि फर्स्ट इट वाज हर सेकंड प्रेगनेंसी, फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी उनको ये सारी चीज़ें, उन्होंने थोड़ा सा वेट लॉस के लिए तरफ ध्यान दिया था। उनके डॉक्टर ने उनको कुछ केमिकल सप्लीमेंट्स दिए थे। उस टाइम थोड़ा सा उनका हीमोग्लोबिन बढ़ा था, बी विटामिन नॉर्मल हुआ था, लेकिन वो इंटरनली वो सब फील नहीं आ रहा था। तो हमारे साथ उन्होंने 3 महीने काम किया। तो आज उन्होंने कल ही शायद मैसेज डाला है कि जो इंटरनल जो वेल बीइंग का फील है, या जो पोस्ट प्रेगनेंसी उनको हमेशा पिंपल्स आ जाते हैं, या वो केमिकल्स लेने के बाद विटामिन के लेवल तो अच्छे रहते थे लेकिन जो अंदर की एनर्जी अच्छी नहीं रहती थी, या हेयर फॉल रिकवर नहीं हो रहा था। तो उन्होंने 3 महीने में ये प्लांट बेस्ड डाइट से ये सारा रिकवर किया। दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ गट हेल्थ। गट हेल्थ अच्छा करने लगे तो पूरे शरीर में उसका हमें इफेक्ट दिखने लगता है, राइट? सो अल्टीमेटली टू समराइज माई टॉक, टेक होम मैसेज कि ट्राई टू इंक्लूड एटलीस्ट 30 वराइटीज ऑफ प्लांट्स। प्लांट मीन्स प्लांट में से मिलने वाली सब्जियां, शायद रूट्स भी ले रहे होगे या शायद आप फ्रूट्स भी लेते रहोगे। तो ये अलग अलग वराइटीज के 30 वराइटीज इन एनी फॉर्म, शायद आप कुक करते होगे या रॉ फॉर्मेट में लेते होगे, या शायद आप कुछ स्मूदीज बनाते होगे या कुछ अच्छा सा सैलड बनाते होगे। तो अलग अलग वराइटीज में आप प्लांट्स इंक्लूड करो। बच्चों के लिए हम बोलते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स का कंप्लेंट रहता है कि हमारे बच्चे ना सब्जी नहीं खाते, राइट? तो बच्चे आपके तरफ देखते हैं, आप भी उस तरीके से एनवायरनमेंट घर में नहीं क्रिएट करते। आज जब हमारे घर में आ जाओगे, हमारा डाइनिंग टेबल देखोगे तो पूरा डाइनिंग टेबल ऑलमोस्ट 75% डाइनिंग टेबल फल से भरा रहता है। तो उसकी जगह पहले कुछ साल पहले वहां पे ना चॉकलेट, बिस्किट और ये सारी चीजें रहती है। तो अल्टीमेटली आपके बच्चे वो सारी चीजें लेंगे। तो ये सारी चीजें हमारे से चालू हो जाती है। कंज्यूम प्री एंड प्रोबायोटिक्स, बहुत सारे आप जब सर्च करोगे या कुछ नॉलेज लेना चालू करोगे तो बहुत सारी फूड्स प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक्स तरफ से एक्ट हो जाए। जैसे आप केफिर खाते हो या योगर्ट करते हो, प्लांट बेस्ड योगर्ट क्रिएट करते हो, तो वो भी एक प्रोबायोटिक जैसा काम करता है। ओके, कंज्यूम पॉलीफेनॉल्स। पॉलीफेनॉल्स यानी प्लांट फैक्टर्स,
प्लांट में अल्टीमेटली हमें पॉलीफिनॉल्स मिल जाते हैं, प्लांट का एक न्यूट्रिशन और हेल्दी केमिकल्स है, वो हमें इंटरनल ओवरऑल हेल्थ करने के लिए काम करता है। और एज फार एज पॉसिबल रिड्यूस योर ड्रग इंटेक, जितना कम एंटीबायोटिक लोगे। लास्ट 1 ईयर में इतने सारे हमारे क्लाइंट्स और रिलेटिव्स को हमने वायरल फीवर्स, आप देखोगे कि लास्ट 6 महीने में 2 बार वायरल फीवर का ऑलमोस्ट कोविड लाइक वेव्स आके गया है पूरे इंडिया में। उसमें बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स और हमारे जो सगे ये हमारे जो रिलेटिव्स थे, हमने विदाउट एंटीबायोटिक, कुछ लोगों को विदाउट क्रोसिन, उनका फीवर हमने कंट्रोल किया है। उतना हमारे बॉडी को हीलिंग की एबिलिटी है। और हम क्या करते हैं, जब हमें फीवर आता है तब हम उल्टा करते हैं, हमें हाइड्रेशन रखना जरूरी है, उसमें लाइट फूड रखना जरूरी है, तो हम बहुत हेवी चीज या ये सारे केमिकल्स अंदर डालते। नो डाउट ड्रग का रोल है कुछ कुछ चीजों में, जहाँ पे राइट प्रोन इन्फेक्शन, वहाँ पे ड्रग का रोल है। बीइंग ए डॉक्टर, बीइंग एलोपैथ, बहुत सारी जगह पे मैं ड्रग यूज करता हूँ, लेकिन कुछ जगह पे ऑलमोस्ट सामने दिखता है कि यहाँ पे ये एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है, ये पेन किलर की जरूरत नहीं, ये सारी चीजों की जरूरत नहीं है। तो लास्ट वर्ड इज रिड्यूस प्रोसेस फूड, एनी फॉर्म ऑफ प्रोसेस फूड, व्हाइट पॉइजन इन द फॉर्म ऑफ व्हाइट शुगर आपको अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म आपके शरीर में गट हेल्थ डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये मेरा टेक होम मैसेज है। और यहाँ पे शायद मेरा प्रेजेंटेशन एंड होता है। होप आई कुड क्रिएट अवेयरनेस ऑफ गट हेल्थ, उसके रिलेशन विद हेल्थ एंड लॉन्ग टर्म उसका जो आपका इम्पैक्ट है। थैंक यू। बैक टू होस्ट। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने वही किया जो मेरे दिल ने कहा, और माँ कहती है कि काफी अच्छा और डिटेल्ड आपने बताया, तो इस पे वर्क करेंगे। Any questions? अर्चना वांट टू डिस्कस। अर्चना बात नहीं किए थे, तो अर्चना जस्ट वांट टू Hi, इंट्रोड्यूस। Archana. हेलो। एक ही रूम में बैठे, इको ना आए इसलिए मैंने यस डिस्कनेक्ट किया था। सॉरी, आई जॉइंड लेट ऑन वीडियो ड्यू टू सम गेस्ट एट माय प्लेस। तो इस बारे में सिर्फ मैं मेरी टेस्टिमनी देना चाहूंगी, ज्यादा कुछ नहीं। पर यहाँ पे जितने भी लेडीज बैठे, स्पेशली आई वाज ऑब्जर्विंग उषा जी, शकुंतला जी, देन मीनू जी, विनीता जी, जिनकी वीडियोस देख रहे हैं, राइट। तो मैं आप सबको एक कुछ सवाल पूछना चाहूंगी कि हाउ यू वांट टू एज, किस प्रकार से एज होना चाहते हो। एज इज मतलब आने वाला एजिंग इज मतलब होगा ही सबके साथ, राइट। सबका वही है, एजिंग तो होना है। पर डू यू वांट टू हैव दैट हेल्दी एजिंग विथ यू, राइट। ऑफ कोर्स एवरीवन वांट्स, किसको नहीं चाहिए ना, जेंट्स भी, हाँ, नॉट ओनली लेडीज। बट मैं लेडीज को क्यों एड्रेस कर रही हूँ, मेरी स्टोरी से आपको पता चलेगा, इफ सम ऑफ यू कैन रिलेट विथ इट। ओके, व्हेन आई वाज अराउंड 14-15 years old, तो तब मुझे याद है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जब स्टार्ट हुए, तो आई थिंक 10th बोर्ड एग्जाम्स अभी भी याद है, तो स्ट्रेस बढ़ गया। तो 9th के एंड में स्टार्ट हुए, बट 10th के बोर्ड एग्जाम तक पीरियड्स नहीं आए। जस्ट सी 1 year ऑफ अमेनोरिया। उसके बाद जब पीरियड्स आए, तो 10th के एग्जाम के बाद अगेन 11th एग्जाम, 12th के एग्जाम, तो हर वक्त स्ट्रेस रिलेटेड इट वाज द साइकिल कमिंग एंड गोइंग। तो उस बीच में उस वक्त जमाने में मतलब मेरे मम्मी कहती थी कि ज्यादा मेडिसिन नहीं लेने, तो मुझे कोई डॉक्टर को नहीं दिखाना था। सच में मतलब उनका गलत नहीं था, क्योंकि ऐसा तब देखा ही नहीं कि पीरियड्स के लिए कोई जाके दवाइयाँ लेता है। तो आपके घर में कोई लड़कियां अभी ऐसी है जो ये फेस कर रही है इशू, तो मैं बोलूंगी डोंट निग्लेक्ट दोस थिंग्स। अभी काफी सारे रेमेडीज है जहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसा ये गट हेल्थ। आप बोलोगे गट हेल्थ का और इसका क्या संबंध है, बहुत करीबी संबंध है, जब आगे स्टोरी बताऊंगी। सेकेंड थिंग हुआ मेरे लिए कि बहुत ज्यादा एंग्जाइटी, नर्वसनेस, मतलब हमेशा एग्जाम के पहले वो अलग तरीके का स्ट्रेस। मैं बहुत एक टाइप ए पर्सन थी, और पूरा एमबीबीएस जब एडमिशन लिया तो वहां का स्ट्रेस अलग, हर वक्त एग्जाम में ज्यादा स्ट्रेस। तो ये मेरी टेंडेंसी थी, तो मैं इसलिए ऐसे बोलती थी कि मैं ऐसी हूँ, तो आई एक्सेप्टेड इट एंड आई मूव्ड अहेड। तो इसके लिए मैं ज्यादा सोचा नहीं कभी, इसका और फूड का कुछ रिलेशन हो सकता है पता नहीं था। अब देखो ये मेरी पर्सनालिटी थी, इस प्रकार से मैं ग्रो हुई हूँ ज्यादा। और मेरे बहुत दुबली पतली, वेट गेन नहीं होता था, वेट गेन के लिए सोचना पड़ता था। और उसी वक्त दूसरी साइड देखो, जैसे ये सब चल रहा है, तो बचपन से मुझे क्या आदत थी, शायद मेरी मम्मी भी अभी अटेंड कर रही थी, शी नोज कि मैं बिल्कुल सब्जियां नहीं खाती थी, नो वेजिटेबल एट ऑल। आई लव चपाती अ लॉट, इतना चपाती खाती थी, उसमें दूध बहुत ज्यादा, मिल्क का इस्तेमाल बहुत ज्यादा, शक्कर बहुत। आई यूज टू ईट ओनली स्वीट्स, ज्यादातर स्वीट चाहिए,
प्लेट में स्वीट है तो मैं खाती थी। ये मेरा बचपन ऐसा ही रहा, कॉलेज टाइम पे ऐसा ही रहा। जब हॉस्टल रहने गई तो डब्बे में अच्छा नहीं आता था, तो मैं बस रोटियां और चावल खाती थी। तो देखो मेरा कार्ब्स इंक्लूजन कितना था। एंड ऑल दीज थिंग्स टेक मी टू द अनदर लेवल, जहाँ पे आफ्टर मैरिज आई मतलब डायग्नोज्ड एज अ पीसीओडी पर्सन, बिफोर मैरिज ओनली, पर पीसीओडी है करके, यस पीसीओडी है करके हम, मुझे लेबल तो किया गया, मुझे हार्मोनल ट्रीटमेंट मिले, फिर उसके बाद होम्योपैथ लिया मैंने, आयुर्वेदा के सारे पंचकर्मा, एवरीथिंग आई वेंट थ्रू। पंचकर्मा के बाद आई गॉट सम रिजल्ट्स ऑल्सो, पर वो सस्टेन नहीं हो पाए क्योंकि मैंने लाइफस्टाइल ऑल्टर नहीं किया था। इट वॉज जस्ट बस्ती माई क्लेंजिंग, गट क्लेंजिंग, इतना ही हो सका। उसके बाद आफ्टर वन बेबी, मतलब फर्स्ट बेबी हुआ, उसके बाद मुझे बताया गया गायनेक ने कि अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, नाउ योर पीसीओडी गॉट कवर्ड, treated, cured. After 1 year of that first baby, immediately मेरा वही साइकिल का प्रॉब्लम चालू हो गया। नॉट ओनली पीसीओडी, अलॉन्ग विद दैट आई वाज हैविंग लो इम्यूनिटी, देन तब वेट बढ़ गया, तो वेट वापस भी आता था, पर मैं ब्लॉटेड दिखती थी, ऑल द टाइम टायर्ड, और हमेशा एक कंप्लेंट रहती थी कि अच्छा नहीं लग रहा, कुछ तो हो रहा है, इधर दर्द उधर दर्द, जनरलाइज बॉडी एक, कोई जॉइंट नहीं दुखता, ऐसा कुछ भी नहीं था उस वक्त। तो सो मेनी थिंग्स वेर एसोसिएटेड विथ माई हेल्थ। तो एज यूजुअल बीइंग अ डॉक्टर वी यूज टू ओवर डायग्नोज आवरसेल्फ, बहुत ओवर कॉशियस भी रहते हैं, और डॉक्टर्स आर वर्स्ट पेशेंट्स। तो पेट में दर्द, लूज मोशन बहुत बार, कॉन्स्टिपेशन, मेरा आईबीएस भी निकलने लगा था, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम डायग्नोज नहीं हुआ था, but it was like towards that phase। और ये सब हो रहा था तब डॉक्टर जीवन तो सर्जन है, तो सारे मेरे सारे इन्वेस्टिगेशन हो गए, सीटी स्कैन, कॉन्ट्रा, सब कुछ। उसी दौरान मुझे साइटी का भी स्टार्ट हुआ, स्पाइन प्रॉब्लम भी स्टार्ट हुआ, तो वो भी डायग्नोस नहीं हो रहा था कि स्पाइन में कुछ है। एक राइट लेग पेन कर रहा था, और मुझे अभी भी पता है, आई विल गिव दिस क्रेडिट फॉर द क्योर ऑफ माई साइटिका टू डॉक्टर तृप्ति जैन, क्योंकि पीएलआर के बाद वो क्योर हो गया, क्योंकि कोई भी मेडिकल डायग्नोसिस नहीं निकल रहा था। तो दैट वाज वन पार्ट। उसके साथ साथ ये सारी चीजें भी हो रही थी, तो आई वाज लाइक क्या हो रहा है। एंड व्हेन डॉक्टर जीवन वेंट थ्रू ऑल दिस रिसर्च, जब इनका रिसर्च कंप्लीट हुआ, मेरे ऊपर भी बहुत सारे ट्रायल्स हो गए कि ये करेंगे वो करेंगे। And to my surprise, now I'm really living healthy, happy life by using these 6 pillars. जो अभी बताया, उसमें spiritual journey is one part, and another 5 parts. Yes, definitely I follow everything. Current my age, running age is 43. अभी जितने एज की दिख रही हूँ ना, उतना मैं 29 एज में, जब मैंने ये ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट किया होगा, 29 से बहुत अप्स डाउन्स आके गए, तब मैं जो दिखती थी शायद 40-45 की लगती थी, और अब उल्टा हो रहा है, एज रिवर्सल हो रहा है, एंड आई एम रियली हैप्पी। उसमें सब पिलर्स का रोल है, एंड आई एम थैंकफुल टू फिटनोआ फॉर ऑल दिस काइंड ऑफ मतलब हीलिंग फॉर मी। तो मेरा रूट कॉज था गट हेल्थ इश्यूज, एवरीथिंग बॉइल डाउन टू गट हेल्थ along with other 5 pillars। उसमें स्पिरिचुअल जर्नी, yes, it has a major role, I must say। और उसके साथ साथ मेरा फूड ऑल्ट्रेशन। आज आप जब भी घर पे आओगे, आप देखोगे अर्चना चपाती नहीं खा रही है, और ज्यादा वेजीज और ग्रीन्स खा रही है, ज्यादा फ्रूट्स खा रही है। देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज इनसाइड मी। आई लॉस्ट 8 kg। जो ब्लॉटिंग था मेरा, नॉर्मल बीएमआई में रहती थी, पर वो जो ब्लॉटिंग था, पेट बहुत दिखता था, 2-2 सेक्शन सिजेरियन है उसके बाद वाला, तो इट इज लाइक मेरे लिए तो ये मिराकुलस थिंग्स है कि यहाँ से आगे की जर्नी वो एक अलग ही पार्ट है। सिंस लास्ट 5 to 6 years आई एम लिविंग दिस हैप्पी हेल्दी लाइफ, जिसमें मेडिसिन फ्री लाइफ बोल सकते हो। नहीं तो हर महीने 3-4 हफ्ते तो मेडिसिन पे रहती थी, इधर उधर से 1 हफ्ता फ्री, मेडिसिन फ्री। तो यू कैन इमेजिन, एटलीस्ट कुछ नहीं तो एंटासिड तो चलते थे। तो ये बहुत सारे सिम्टम्स, बहुत सारे इनसे फ्री हुई हूँ। और नॉट ओनली मी एंड नॉट ओनली जीवन, वी आर हेल्पिंग मिलियंस ऑफ पीपल आउटसाइड देयर। अभी तक हमारे ऑलमोस्ट 200+ सक्सेस स्टोरीज हो चुके हैं ऑलरेडी, एंड 100+ पीपल आर स्टिल इन ट्रांसफॉर्मेशन विथ अस, विथ फिटनोआ। So this from me, Truptima, and I'm really grateful for this opportunity to talk on this stage. This is a very, 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 what I can say, it is a sacred space जहाँ पे हमें बात करने के लिए मौका दिया आपने, and मतलब क्या कहे तृप्ति जी के लिए, really, I'm really, really grateful for you. Thank you, Jeevan and Archana. Wonderful. I think बहुत कुछ सीखने को मिला है आज, and like Dr. Jeevan said, that the gut being the center of your body, अगर आपका center of the body ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपके limbs definitely will function better.
So just like the center of the earth, the center of our whole system is the soul. तो जब हमारा सेंटर हेल्दी है, मुझे लगता है कि सब कुछ हेल्दी हो सकता है. So I think ऐसा ही तो कहते हैं ना कि घर का जो सेंटर होता है, the kind of foundation of your house, if that is strong, then everybody else remains healthy. So anybody else having questions, please ask questions. If you, yes, Asha ji ने हाथ ऊंचा किया है. Asha ji, please ask. जी, thank you, Dr. Jeevan. It was very informative. बहुत कुछ सीखने को आज मिला and बहुत अच्छा लगा. My question is, ये जो हम विटामिन सप्लीमेंट्स लेते हैं, is it advisable, मतलब is it harmful या लेना नहीं चाहिए? एक्चुअली ना ये बहुत बार कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है, और जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं ना, जिस फूड क्वालिटी में हमारे पास फूड आ रहा है, तो वहाँ पे डेफिशिएंसी तो 100% है. बहुत सारे डेफिशिएंसीज सब लैब टेस्ट में नहीं निकलते हैं, तो वो डेफिशिएंसीज है. तो इफ यू आर श्योर कि आपके घर में सही तरीके से फूड आ रहा है, ऑर्गेनिक है, सही क्वांटिटी में आपकी हेल्थ की तरफ जा रहा है, तो फिर वो चाहे डेफिशिएंसीज भरते नहीं, डेफिशिएंसीज नहीं रहेगी. दूसरी चीज़ है कि यू मस्ट अंडरस्टैंड द सोर्स ऑफ अ विटामिन एंड मिनरल्स. 99% ऑफ विटामिन मिनरल्स अवेलेबल इन इंडिया आर केमिकली प्रोसेस. यानी सब जो आपको विटामिन सी लेना है, तो विटामिन सी नॉर्मली सिट्रस फूड में रहता है, तो वहाँ से नॉर्मल प्रोसेस जैसे विटामिन सी निकालना है, तो वो विटामिन सी हमारे पास आता है अस्कॉर्बिक एसिड के फॉर्मुलेशन से. तो नेचर में अस्कॉर्बिक एसिड करके सिर्फ विटामिन सी नहीं रहता, उसके आजू बाजू में इतने सारे प्लांट फैक्टर रहते, तो सही तरीके से फिर वो विटामिन सी करके काम करता है. तो इफ यू आर टेकिंग अ केमिकली सोर्स विटामिन, तो वो शायद आपके शरीर में सही तरीके से काम नहीं करेंगे. हमने वो एक्सपीरियंस किया है कि जैसे कॉमन मिनरल्स टेकन, विटामिन मिनरल्स टेकन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, लाइक कैल्शियम, विटामिन डी और आयरन लेते हैं, तो आयरन, ओरल आयरन का इतना कम प्योर कंप्लायंस रहता है कि वो केमिकल आयरन हमारे इंटेस्टाइन गट लेता ही नहीं है. इट इज एज इफ आपका आयरन का रॉड आपने लेकर उसका छोटा सा टुकड़ा कि आप खा रहे हैं, तो इसलिए वो टॉलरेट नहीं होता. उसके वर्सेस वी हैव सर्च एंड कनेक्टेड टू सम नेचुरल सोर्स ऑफ, जहाँ से उन्होंने प्लांट बेस्ड विटामिन निकाला है, प्लांट से ही निकाला है, तो उसका टॉलरेटिव बहुत सही तरीके से आता है. तो इफ यू हैव गुड सोर्स देन इट इज ओके. और डेफिशिएंसी तो 100% रहती है. तो जो मिथ्स फैलते कि विटामिन मिनरल्स कुछ काम के नहीं है, एग्जैक्टली आप केमिकल ले रहे तो कुछ काम के नहीं है. ओके, विटामिन मिनरल्स आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, अब केमिकल ओरिजिन के रहे होंगे. और न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री जो इंडिया में है ना, बहुत डिसरेगुलेटेड है. शायद ड्रग पे रेगुलेशन है, न्यूट्रास्यूटिकल्स पे कुछ रेगुलेशन नहीं है. आपके लेबल, आपको जो विटामिन मिनरल्स लेबल में लेके समझो विटामिन ए इतना 1000 यूनिट मिलता है, तो शायद वो लिखा है इतना मिलता नहीं होगा आपको, इसलिए वो इफेक्ट नहीं करते. तो सही सोर्स से, सही तरीके से, सही गाइडेंस से लिया तो वंडर करते हैं विटामिन मिनरल्स. Thank you very much. राहुल जी, आपने हैंडल्स किया है. हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? या थैंक यू डॉक्टर जीवन शिंदे, इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव. आई जस्ट हैड सम क्वेश्चंस दैट वन दैट यू नो कि जैसे लोग बोलते हैं कि टू ईट्स द सीजनल फूड, you know, and also just the local food and not to eat, you know, those frozen foods which come. So उसमें ये जैसे आप बता रहे थे, but you know, diversity in foods is actually, you know, one should have more diversity. So I mean, it will be contradicting a little bit. नो, फूड को डाइवर्सिटी होना जरूरी है ना. अच्छा, फ्रूट्स, मीन्स के बाहर के नहीं होने चाहिए, but it should be connected with seasonal. एग्जैक्टली. क्योंकि ना आपके एरिया में वो फुल फ्रूट ग्रो हो रहा है, इसका मतलब है आप उस एरिया में रहते हो, तो उसका एनवायरनमेंट सूट हो रहा है. तो जब आप फ्रूट खाते हो तो यू शुड प्रेफरेबली ईट सीजनल लोकल फ्रेश फूड. अच्छा, and जैसे मेरे यहाँ पे, आई एम स्टेइंग इन समझो महाराष्ट्र में, और मेरे यहाँ पे एप्पल नहीं आते हैं, तो दो एप्पल मे बी हेल्पफुल टू मी, लेकिन सही तरीके से मेरे लोकल, जैसे आज मैंगो हर सीजन में नहीं आता. मैंगो समर में क्यों आता है? एक फ्रूट उस सीजन में क्यों आता है? उस सीजन में हमारे आजू बाजू में जो एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं, इट इज नॉट कांस्टेंट ना, तो उस हिसाब से वो फ्रूट डाला गया है वहाँ पे. तो मैंगो
समर में है, मैंगो रेनी सीजन में नहीं आएगा, और खाओगे तो शायद आपको वो डाइजेस्ट नहीं होगा। और ये मेरे को बताएं कि ये जैसे कि आप बता रहे थे दैट एक तो जैसे एसी एनवायरनमेंट, उसमें भी गट हेल्थ का इफेक्ट हो जाता है क्या, एसी एनवायरनमेंट से में रहने पर कॉन्स्टेंटली, हाँ, एसी ऑब्वियसली एनवायरनमेंट? एसी एनवायरनमेंट कहने का मतलब था कि देखो आज जो मॉडर्न तरीके से काम कर रहे हैं हम, तो थ्रू आउट द डे हम सन देखते ही नहीं है, ओके, सनलाइट देखते ही नहीं है, तो सनलाइट बहुत इसेंशियल पार्ट है हमारा। तो थ्रू आउट द डे हम एसी में काम करते हैं, एसी इज वेरी डिहाइड्रेटिंग, एसी में जो हम लगते हैं ना, हमारे शरीर में बहुत वाटर लॉस इनडायरेक्टली हो जाता है। बहुत बहुत सारे लोगों को स्किन की इश्यूज दिखते हैं, बहुत बार हमारे क्लाइंट आ जाते हैं स्किन के लिए अर्चना के पास में ना, तो उनको ड्राइनेस आ जाता है, और हम हिस्ट्री लेते हैं तो वो सी इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्किंग थ्रू आउट 10-12 घंटे एसी में रहते, तो ये एसी का इफेक्ट है। एसी इज जस्ट आर्टिफिशियली क्रिएटेड एनवायरनमेंट, तो उसका कुछ ना कुछ अपने हेल्थ में इफेक्ट होता ही है। और ये जो एंटीवायरल जैसे बोलते हैं, दे आई मीन पीपल आर सेइंग दैट यू शुड गो फॉर दिस ईयरली एंटीवायरस इंजेक्शंस एंड ऑल दैट, सो दैट दोस विल बी एक्चुअली बी हार्मफुल देन, नो? नो, एंटीवायरल जो आप वैक्सीन लेते, दैट इज डिफरेंट। वैक्सीन, वैक्सीन तो but that will also be taking away from your normal ecological bacteria. एग्जैक्टली वो तो है, वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है वैक्सीन का, बहुत बहुत चीज़ों में कनेक्शन है, वो तो डिस्कस किया तो 1 घंटा लगेगा। लेकिन दिस इज अगेन अ पर्सनल, यू हैव टू डिस्कस विथ योर डॉक्टर। आपकी कुछ लोग, जैसे मेरी मदर इन लॉ इज अस्थमेटिक, तो उनको अस्थमा एक्सेवरेट हो सकता है, तो उनके लिए शायद वो लागू पड़ता है, क्योंकि अभी उनकी डिसीज वहां तक गई है, तो वो वहां पे सपोर्ट चाहिए उसके लिए। तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी हो सकता है, लेकिन एज यू आर सेइंग कि वैक्सीन नेचुरल इम्यूनिटी से बजाय हमें आर्टिफिशियल इम्यूनिटी देता है, दैट इज राइट। तो उसके कुछ इम्प्लीकेशन भी है, उसके बहुत सारे रिसर्च भी निकल आ रहे हैं, जैसे ऑटिज्म कुछ वैक्सीन के लिए कनेक्टेड किया जा रहा है, नॉट 100% प्रूवन, बट कुछ कनेक्शन है, तो वो साइंस अभी शायद एक्सप्लोर हो जाएगा आगे। And Dr. Shinde, you also mentioned about the cesarean, that I mean, so basically, people who go opt for cesarean actually should avoid it for the gut health in later years. Is that what you were saying? दैट कैन नॉट बी जनरलाइज, बिकॉज सिजेरियन ऐसा एक डिसीजन रहता है कि शायद वो बच्चे की या माँ की जान बचाएगा, तो दैट कैन नॉट बी जनरलाइज। जस्ट दिस इज व्हाट अ साइंस हैज प्रूवन कि हमारा जो गट बैक्टीरिया जो मिलता है मैक्सिमम, जब हम बच्चा पास हो जाता है तो वहां से मिलता है, उसको फिर लॉन्ग टर्म हमारे हेल्थ के लिए इफेक्ट है। लेकिन अब दुनिया में आने के पहले ही सिजेरियन न करने के बाद बच्चा मर रहा हो, तो उसका मतलब नहीं है, तो दैट इज अच्छा, वेरी पर्सनल डिसीजन, अच्छा, तो इससे दिस कैन नॉट बी जनरलाइज। if it's an emergency case, then हाँ, I mean go for यस, that. But जितना हो सके go natural. इंडिकेटेड इमरजेंसी एंड इंडिकेटेड सीजन। अच्छा, okay, okay. Thank you, जी. Thank you so much. हाँ जी, who else? There are some more participants. Ma'am, I would like to ask one question, sir. What about flu shots, which people advise that you can take flu shots in cities, very polluted cities like Delhi and all? So what about flu shots? Same thing, the point we discussed about vaccines, no? Yes. Flu vaccines, as I already explained. I have a question. Understood. I have a question here. Seema. Yeah, hi, ma'am. So जीवन सर, थैंक यू सो मच, इट वाज बहुत ही बढ़िया सेशन था। आपने इतनी ब्यूटीफुली और इतनी ऑथेंटिकली समझाया, थैंक यू सो मच, वेरी 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 नाइस सेशन, थैंक यू। सर मेरा एक क्वेश्चन है, हम फिजिकल हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो क्या गट हेल्थ और जो आपने लाइफस्टाइल बोला है वो हमारे मेंटल हेल्थ, हमारे थॉट्स पे भी इम्पैक्ट करता है? बहुत ज्यादा कनेक्शन, जैसे बोला कि इट इज काइंड ऑफ अ सेकंड ब्रेन, बहुत ज्यादा कनेक्शन है गट हेल्थ का मेंटल हेल्थ से। तो जितना ज्यादा आपका गट हेल्थ इंप्रूव होगा, उतना ज्यादा आपको बदलाव दिखेगा मेंटल हेल्थ में। Okay, so I am asking because I am little bit on mental health medication from a psychiatric. So if I shift to the gut health and healthy lifestyle, so it will impact my mental health also. So I can be off the psychiatric medication. अभी यहाँ इस स्टेज पे आई कैन नॉट कमेंट, आपका पूरा असेसमेंट करने के बाद आई कैन कमेंट अपॉन कि ये हो सकता है। देखो,
हमारे जो बॉडी में है ना, बॉडी में एक दिस इज स्पेक्ट्रम। देखो एक स्पेक्ट्रम में वी आर ऑन हेल्थ और दूसरे स्पेक्ट्रम में हम अनहेल्दी है। इस पूरे जर्नी में कौन से कहाँ पे हो आप, आई डोंट नो। ओके, एक अनहेल्दी के एक एक्सट्रीम स्पेक्ट्रम में हो गए तो वहां से रिवर्स करने में टाइम लगेगा। आप हेल्थ के बहुत इस स्पेक्ट्रम में हो गए तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ओके, दिस इज यूजफुल। हमने चेंजेस देखी है, तो यहाँ पॉइंट पे हम नहीं कमेंट कर सकते। आई कैन नॉट कमेंट कि आप ड्रग फ्री रहोगे, लेकिन डेफिनेटली बहुत सारे लोग हमने ड्रग फ्री करने में हेल्प किया है, तो इंडिविजुअलाइज वहाँ पे वो सोल्यूशन हो जाएगा। तो कौन से जगह पे आप होगे, अल्टीमेटली डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। Okay, thank you very much. डॉक्टर रत्ना आपको पूछना है, अनम्यूट। हाँ, डॉक्टर रत्ना थैंक यू सो मच डॉक्टर, बहुत अच्छा ये आपका सेशन था। मेरा एक क्वेश्चन है, आजकल लोग बहुत बात करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में, तो इसका भी गट हेल्थ से कुछ रिलेशन है? यस, इंटरमिटेंट फास्टिंग हेल्प करता है गट हेल्थ के लिए, बहुत सारी चीज़ों गट रेस्ट करने के लिए। आज जो हमारा एक्चुअली इंटरमिटेंट जो फास्टिंग, तो आज इंटरमिटेंट फास्टिंग तो कॉन्सेप्ट अभी आया है। हजारों साल से तो हम हमारे ट्रेडिशन में फास्टिंग बताते, उसको हमने बहुत गलत तरीके से अल्टर किया है। फास्टिंग के टाइम तो हम इतना लोड देते हैं जो फूड हम खाते हैं अभी के फास्टिंग के स्टाइल में। तो फास्टिंग हर एक रिलीजन्स में फास्टिंग के बारे में बात की, उसका वही रीजन है। तो वो सारा रेस करने के लिए जो शायद कॉन्स्टेंटली बम्बार्ड हो रहा था जो फूड्स के लिए, वो सारा करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फास्टिंग का भी। तो इसको करने में कोई हार्म नहीं है? हार्म नहीं इंटरमिटेंट फास्टिंग, लेकिन फिर अगेन सेम थिंग, हाउ यू आर, आपकी डिसीज कंडीशन क्या है, आप क्या ड्रग ले रहे हो। तो यू हैव टू बी, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ये सारा चेंज किया ना। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कुछ मैसेज आते हैं, लोग उसको फॉलो करते हैं। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड योरसेल्फ, और आपको कुछ गाइडेंस चाहिए, किसी का तो हैंड होल्डिंग चाहिए ताकि वो आपको हेल्प कर सके। दिस आर जस्ट जनरलाइज प्रिंसिपल, उसको आपके लाइफ में लाने के लिए यू मस्ट हैव प्रॉपर प्लान एंड सम गाइडेंस। Okay, we have Manisha Saxena. Manisha. हाँ जी मैम, गुड इवनिंग मैम। Good evening. It was actually a very enriching talk. Thank you, doctor. I've got two queries actually. एक तो intermittent fasting जो अभी डॉक्टर रत्ना ने पूछा, I just wanted to know कि उसमें हमारा food plan क्या हो सकता है? I mean, intermittent fasting maybe what should be our intake? It should be exactly the way doctor said, or intermittent fasting में they say कि you can have anything if you are doing intermittent fasting. And another query is that कि sugar का क्या substitute हो सकता है? शुगर का तो वी आर वेरी रिच, शुगर के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। ओके, आपने ठान लिया तो आप बहुत सारी चीज़ें आप सबसे पहले जब हमने सोचा कि शुगर का रिप्लेसमेंट करना है तो हमने ढूंढना चालू किया। सिंपल, आपका जो डेट्स रहते हैं ना, डेट्स खजूर, शुगर का बहुत बढ़िया रिप्लेसमेंट। वो डेट्स से बहुत सारी चीज़ें आप, वो सारी मिठाइयाँ जो डेट्स के एक्सट्रैक्ट से, डेट्स के प्रोसेसिंग के साथ निकाल सकते हो। तो सिंपल रिप्लेसमेंट शुगर का, राइट। दूसरी चीज़ है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में अगेन ये बहुत सारा मिथ बना है कि मैं फास्ट कर रहा हूँ तो मैं उस विंडो में कुछ भी खा सकता हूँ। Exactly, sir. तो कुछ भी खाया तो कुछ भी वो गट बैक्टीरिया की तरफ जाए तो कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज गुड, बट के टाइम भी आपको खाना उस टाइप का, उस तरीके का लिया तो चलेगा। तो एक गिल्ट निकालने के लिए दूसरा गिल्ट हम पैदा करते हैं। मेरे हेल्थ के लिए मैं कुछ कर रहा हूँ तो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन फिर मैं उसमें कुछ भी खाऊंगा तो उसका मतलब नहीं है। तो सारे साइंस का, मैं जैसे बोलता हूँ कि कोई भी एक फूड अलग नहीं है या कुछ एक कॉन्सेप्ट अलग नहीं हो सकता, उसका कनेक्शन अलग अलग जगह पे। तो वो कनेक्शन के साथ जब आप करोगे तो उसका आपके हेल्थ के लिए बेनिफिट मिलेगा। ओके, थैंक यू डॉक्टर। सर, एक और क्वेरी है कि इन केस हम लोग घर में, आई मीन बीइंग इमीडिएटली स्विच ओवर नहीं होता, फैमिली में डिफरेंट कैटेगरी के मेंबर्स होते हैं, तो इन केस जैसे घर में कुछ मीठा बना रहे हैं तो देयर वी कैन नॉट यूज डेट्स, तो उस समय व्हाट काइंड ऑफ शुगर दैट इज, आई मीन ग्रेजुअल, वी कैन नॉट इमीडिएटली ब्रिंग, क्योंकि दूसरे दिन से एक वीक तो चलेगा, फिर एवरीवन विल रिबल कि नहीं अभी तो नहीं करना है बिकॉज बच्चे भी हैं, एवरीवन इज देयर इन द फैमिली। ये हमने हमारे क्लाइंट के साथ एक्सपीरियंस किया है कि वो क्लाइंट ना, वो आपका खुद का आंसर डालने के लिए गाइड कर लेते हैं कोच को कि कुछ भी करो मुझे वो शुगर जैसा मिला के दो। कुछ चीजों में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, जो है वो है। शुगर नहीं है तो शुगर नहीं है, शुगर खाना है तो शुगर के आपको इम्प्लीकेशन मिलेंगे।
कुछ ऐसा टेढ़ा मेढ़ा आड़ा आड़ा करके शुगर जैसा नहीं मिलेगा, तो शुगर जैसा ऐसा नहीं हो सकता है। ओके, शुगर के सब्स्टिट्यूट बहुत सारे डेंजरस है, आप बहुत सारे शुगर के सब्स्टिट्यूट शुगर फ्री खाते हो ना, वो और भी डेंजरस है, मार्क माय वर्ड। जो नेचुरल है वो नेचुरल है, जो आर्टिफिशियल है वो आर्टिफिशियल है। वही स्टीविया के प्रॉपरली स्टीविया के पत्ते का जो बने हुआ है तो दैट इज गुड, लेकिन स्टीविया की जो एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, ड्रॉप्स निकालते हैं, दैट इज नॉट गुड, क्योंकि वो प्रिजर्व करना पड़ता है, प्रिजर्वेटिव डालना पड़ता है। स्टीविया के पत्तों का पाउडर आप ले रहे हो तो दैट इज गुड। ओके, थैंक यू डॉक्टर। जैगरी किसी ने बोला, जैगरी कैन बी यूज्ड, राइट? जैगरी कैन बी यूज्ड, ऑर्गेनिक अगेन, जैगरी इज अ फॉर्म ऑफ शुगर। अगेन आपका टोटल कार्बोहाइड्रेट इंटेक क्या है, अगेन आप कितने स्पाइक्स कर रहे हो, जागर इज अ शुगर ना, अगेन तो वो भी एक जानना जरूरी है। हर एक स्पाइक के साथ आपके शरीर में कुछ ग्लाइकोटॉक्सिन्स बन जाते हैं, उसके लिए और 1 घंटा में बात कर सकता हूँ, तो वो भी आपको जानना जरूरी है कि वो जागेरी तो यूज कर रहे हैं सब्स्टिट्यूट करके, लेकिन वो भर भर के डाल रहे हैं, तो और कौन से फॉर्मेट में आ रहा है, ऑर्गेनिक है क्या, राइट, या क्या है, उसके हिसाब से वो आपको जज करना पड़ेगा। प्रोपोर्शन इज इम्पोर्टेंट, मॉडरेशन इज इम्पोर्टेंट। Hello. Yes. Hi, doctor. Hi. It's a wonderful session. You spoke about detoxification. तो आपने बताया कि बॉडी अगर अल्कलाइन हो जाएगा तो देन द डिटॉक्सिफिकेशन इट फैसिलिटेट्स डिटॉक्सिफिकेशन। एनी क्विक वेज टू डिटॉक्सिफाई द बॉडी? सिंपल थिंग है कि आप सबसे पहले जब आप प्लांट बेस्ड में आ जाते हो, ज़्यादा फल फ्रूट आपके बॉडी में डालना चालू कर दो तो दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग। दूसरा चीज़ है कि ट्राई टू इंक्लूड सम ग्रीन काइंड ऑफ अ स्मूदी, जिसमें कुछ आप रॉ वेजिटेबल डालते हो और एक आधा फ्रूट डाल सकते हो। सिंपल वेज, जैसे आपने स्पिनच लिया और आपने एक बनाना लिया, राइट, उसमें आधा ग्लास पानी डाला और उसमें आप टेस्ट के लिए थोड़ा सा स्वीटनेस बढ़ने के लिए, मार्क आपको डायबिटीज नहीं होगा और बाकी कुछ चीज़ नहीं होगा, तो उसमें आपने 2 डेट्स डाले और उसको आपने ये किया, आपके स्मूदी मेकर में बनाया, तो दैट कैन बी जस्ट सिंपल सब्स्टिट्यूट टू स्टार्ट विथ अल्कलिनिटी। ओके, नया चीज़ डालने के पहले बहुत बड़ी चीज़ें हमें निकालना जरूरी है, तो आपका जो केमिकल्स का इंटेक हो रहा है, आपका जो शुगर का इंटेक हो रहा है, आपका जो चाय और इसका चीज़ इंटेक हो रहा है, वो भी रिड्यूस करना जरूरी है। मैं हमेशा बताता हूँ कि 2 चीज़ें देखो, आपके पास ना एक 10 किलो वाला 10 लीटर वाला ब्लैक कलर है और 10 लीटर वाला आपका व्हाइट कलर है। क्या लगता है आपको 10 लीटर वाला व्हाइट कलर ब्लैक कलर में डालने के बाद पूरा व्हाइट होगा? नहीं होगा ना, उसको शायद 50-100 लीटर व्हाइट डालना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि अब ये अच्छा सा टॉक सुन लिया हमने तो थोड़ा सा चेंज करेंगे, बाद में 2-3 दिन के बाद में वो व्हाइट कलर तो डालना चालू किया, फिसल जाते, फिर से ब्लैक कलर डालना चालू करते। तो कोई भी एक छोटा सा सिंपल मोटिवेशन ना, ये मोटिवेशन को हमें हैबिट में बदलने के लिए कंसिस्टेंट काम करना पड़ेगा, एटलीस्ट फॉर 21 डेज। थैंक यू। Nidhi, I think, wanted to ask. Dr. Divya, you want to ask? Yes, Nidhi? Nidhi, go ahead. Yeah, thank you, sir, for wonderful session. मेरा क्वेरी ये है कि हाउ डू वी आइडेंटिफाई कि लीकी गट सिंड्रोम है? लाइक आपने बोला ना कि इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, लाइक इट ऑल स्टार्ट्स विथ गट ओनली। तो एक्चुअली लीकी गट असेसमेंट का एक ये है, हमारे पास क्वेश्चनर भी है और सिंपल चीज़ें से भी हमें समझता है। जैसे गट आईक्यू का हमने स्कोर दिया है, तो हायर लेवल पे जो आपका स्कोर आ रहा होगा तो भी गट का साइंस है। ऑलरेडी आप डायग्नोस हो गए कुछ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज से भी, वो लीकी गट का साइन है। आपको स्किन कंडीशंस बहुत सारे हो गए, एलर्जिक रहेगा, एलर्जी कंडीशन हो गए तो वो लीकी गट का साइन है। तो इट इज ब्रॉड टर्म, ऐसा एक पिन पॉइंट डायग्नोसिस नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना यहाँ पे एक ट्यूमर है, उसका बायोप्सी लिया तो वो हो गया। तो लीकी गट इज एक जनरलाइज टर्म है कि जिससे प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत सारे सिम्टम्स और ये सारे जब दिखते तो हम बोलते हैं कि दिस इज अब लीकी गट के साइंस दिख रहे हैं।
ओके और जैसे फ्लैटुलेंस होता है तो ये सब चीजें भी उसी में आता कंसिडर होता है आ लेकिन सकते हैं। बहुत कांस्टेंट इरिटेबल फ्लैटुलेंस हो रहा है, कुछ थोड़ा सा खाने का अल्टर होगा तो एक दिन हो रहा है, दैट इज ओके, पर कंसिस्टेंटली आपका सिम्टम हो रहा है तो फिर आपका गट हेल्थ का इश्यू जरूर है आपको। ओके ओके सो आप आई कनेक्ट पर्सनली फॉर दिस। थैंक यू। Let me चैट see. भी कुछ Anybody क्वेश्चंस else? हैं अच्छा, आए हैं questions? या चैट में भी हैं। एक तो है, सर कैन यू हेल्प अ पर्सन विद डिप्रेशन, ये क्वेश्चन है। और एक बार किसी ने आपके फोन नंबर भी मांगे हैं पर्सनल। अभी नंबर दिया है। नंबर ओके डिप्रेशन क्या चीज, किस वही बोला कि अभी तक आई कैन नॉट कमेंट, थोड़ा सा पर्सनलाइज असेसमेंट करने के बाद हो सकता है, तो मेरा नंबर डाला है तो यू कैन जस्ट कनेक्ट टू मी। और आई जस्ट अर्चना को भी उसका नंबर डालने के बोलता हूँ, somebody is comfortable to connect with Archana. Yeah, I think personal consultations can be had because these are all very personal questions. I don't think they need to be discussed here. So, okay. और एक सवाल था, किसी ने पूछा है कि A2 मिल्क के बारे में, A2 मिल्क हेल्दी रहता है क्या? ये बहुत कॉमन सवाल है जब मिल्क के बात करते हो तो। ओके, A2 मिल्क लेते होगे जो हम देसी गाय से लेते होगे तो दैट इज हेल्थियर कंपेयर टू द रूटीन जो मिल्क लेते हैं। लेकिन अब जैसे कुछ वेव्स आता है ना हेल्थ का, जैसे ये वाला कच्ची घानी का तेल या कुछ आता है उसका वेव निकला, A2 मिल्क का वेव निकला, तो वहां पे फिर बैड प्लेयर्स भी आ जाते हैं। तो यू शुड बी 100% श्योर कि जो आपको A2 मिल्क का लेबल लेके आता है तो सही में A2 मिल्क है क्या, उसमें कुछ मिलावट तो नहीं है ना, वो सही, वो जानना बहुत जरूरी है। तो डायरेक्टली अब A2 मिल्क कोई बेच रहा है आपको 50 रुपए लीटर से ज्यादा, 100 रुपए लीटर में बेच रहा है, तो शायद यू डोंट नो वहां पे क्या हो रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ देसी गाय होके मतलब नहीं है, उसको जो चारा जाता है वो भी ऑर्गेनिक चाहिए, उसको कोई एंटीबायोटिक या उसको भी कोई हार्मोन का इंजेक्शन नहीं देना चाहिए, बहुत सारी चीजें उसमें आ जाती है। ये कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए हम हमारे क्लाइंट को पहले 3 महीने बोलते हैं कि नो फॉर्म ऑफ मिल्क, थोड़ी सी परमिशन मिली ना तो उसमें बहुत डाइवर्सिफिकेशन होते हैं। तो एटलीस्ट एज अ रिवर्सल फेज, या जब आप हेल्थ गेन के बहुत अच्छे फेज में होते हैं तो वहां पे हम कुछ चीजें ऐसे निकाल ही लेते हैं, बाद में बोलते हैं कि हम देखेंगे, आप इतना अचीव करो, अब हम ये ऐड करना चालू करें। जैसे शुगर का किसी ने सवाल पूछा था। Okay, I think people have asked whatever they had to. So, so thank you, Dr. Jeevan and Dr. Archana, for all the sharings. And if you want to connect to them personally, please do so. Their numbers have been given in the chat box. Okay. And we'll also put the numbers on when we upload the video on YouTube. So वहाँ पे हम numbers डाल देंगे so that people can get your numbers even on YouTube. So thank you so much. And thank you everybody for being here. Thank you. And continue being here on Thinking Thursday. Thank you, Dr. Jeevan and Archana. Thank you everybody else.